सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराएं। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाएं। क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाए। सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराएं। RJS जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए। RJS वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए। I now request Srimati Binda Manna from RJS PBH RJS Positive Media and Srimati Nirmala Devi from Silver Oak Public School to welcome Dr. Nitin Shakya, SDM Patel Nagar, New Delhi. I also request Shri Uday Kumar Manna from RJS PBH RJS Positive Media to present our grant to Dr. Nitin Shakya sir. Jai Hind. It is with immense pleasure and a deep sense of gratitude that I, Akanksha Manna, as the head of creative team at RJS PPH RJS Positive Media, stand before you today. I extend a very warm welcome to all. First and foremost, I wish to express our profound thanks to our distinguished chief guest and organizer, Dr. Nitin Shakya, IAS, SDM Patel Nagar, New Delhi, and ex-Assistant Commissioner of Police, Danubes. Sir, we are truly honored by your presence today. In fact, it was your kind invitation that inspired the RJS Positive Yuva Toli to be a part of this significant event. The 434th Amrit Kal Ka Sakaratmak Bharat Uday program. Your encouragement has been invaluable and we are deeply appreciative of your continued support and commitment to your shared vision. Additionally, I welcome Srimati Tripti Vashne and Srimati Nirmala from Project Coordinator DDMA West. We are also proud to collaborate with the Trinity Foundation. A special welcome to Dr. Sameer Bhati, President and Director, Public Health Trinity Foundation, and Mr. Dheeraj Sehgal, Senior Manager, whose dedication to community well-being is truly commendable. I now acknowledge Shri Uday Kumar Manna, the founder of RJS PBH, RJS Positive Media, and his dedicated team for their unwavering hard work, vision, and dedication that are truly inspiring. On behalf of Ram Janki Sansthan, Positive Broadcasting House, I also extend a heartfelt welcome to all the respected dignitaries, RJS Positive Yuva Toli, students from the Silver Oak Public School, and the principal Srimati Nirmala Devi, and 8th class teacher Srimati Hina Khan, and other fellow participants who have joined us here today at the DM office near Rajouri Garden, Metro Station, New Delhi. Your presence signifies your belief in our mission and dedication to a positive future. Moreover, Sakaratmak Bharat Uday, Ek Parivar, Vishwa Ek Ghar, a visionary decade-long program spanning from 2025 to 2034. This initiative is a cornerstone of our efforts to contribute to the nation's progress, resonating deeply with the spirit of Azadi Ka Amrit Mahotsav, celebrating India's journey and aspiration. The themes chosen for today's online and offline program: motivational sessions, career counseling, Nasha Mukt Bharat, fitness and positivity, are not merely topics.
They are the crucial pillars upon which we aim to build a resilient, empowered, and vibrant society. As the head of the creative team, I am particularly enthusiastic about how these sessions will inspire innovative thinking and collective action, fostering holistic growth for individuals and communities alike. To all our participants, I encourage you to immerse yourself in the discussions, actively share your insights, and leverage the valuable knowledge that will be imparted today. Your active engagement is vital to the success of this session. So, hello everyone. On behalf of District Magistrate West, I welcome you all. आप लोग यहाँ पे इतनी सुबह सुबह आ गए हैं and we have such a huge gathering. So, I thank you all for coming to DM Office West. So, ये हमने एक छोटा सा प्रोग्राम आपके लिए ऑर्गेनाइज किया है जिसमें हमने काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ रखी हैं. हमारा मेन मकसद है कि भारत सरकार का, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका एक अभियान है नशा मुक्त भारत अभियान. हम सबको मिलके भारत को नशा मुक्त बनाना है. अब बच्चे जो होते हैं वो फ्यूचर होते हैं इंडिया का, और अगर बच्चे ही अगर नशे की तरफ जाएंगे तो आप जानते हैं कि फ्यूचर जो है इंडिया का ब्राइट नहीं हो सकता है. तो हमारा फोकस है कि जो हमारे आप जो यूथ आए हैं यहाँ पे, आप लोग नशे से दूर रहें. अब नशे से दूर कैसे हो सकते हैं? सबसे पहले आपको फिज़िकल फिटनेस के ऊपर जोर देना है. आपको अच्छा खान पान खाना है, फिज़िकली फिट रहना है. सेकंड चीज़ है कि अगर आप लोग को एजुकेशन अच्छी मिलती है, सही डायरेक्शन में आपको एजुकेशन मिलती है, तो आप लोग नशे से दूर रह सकते हैं. अभी आपने देखा कि पहले के टाइम में पढ़ाई कितनी बोरिंग होती थी. अगर आपको कुछ भी डिफ़िकल्ट आ रहा है तो आप नहीं समझ सकते थे, लेकिन आज के टाइम में यूट्यूब है, और आज जैसे आपको सर ने बताया कि AI टूल्स हैं आपके पास. कोई भी टॉपिक अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो AI टूल से आप कितना इंटरेक्टिव वे में उस चीज़ को समझ सकते हैं. तो पढ़ाई को इंटरेस्टिंग आप अपने हिसाब से ही बना सकते हैं. सेकंड चीज़ है कि एक बार जब आपकी पढ़ाई ख़त्म हो गई है तो आपको सही कैरियर में जाना है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं. तो उसके लिए भी आपके पास यहाँ पे टीम रहेगी जो आपको ब्रॉड ऑप्शंस के बारे में बताएगी. और जैसा कि DM ऑफिस जो होता है, हर एक ज़िले का एक डेवलपमेंट का सीनियर मोस्ट ऑफिस होता है जहाँ पे जिलाधिकारी जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बैठते हैं, साथ में ADM होते हैं, और हर एक सब डिवीज़न के SDMs होते हैं. तो उसके बारे में आपको यहाँ पे बताया जाएगा. जो हमारी ये वेस्ट डिस्ट्रिक्ट है, यानी कि पश्चिमी जिला, इसमें 3 सब डिवीज़न्स हैं. एक है पंजाबी बाग, एक है राजौरी गार्डन, और एक है पटेल नगर. उसका मैप आपको दिखाया जाएगा कि किस तरह से दिल्ली में ये एक जो ज़िला है उसको हम लोग किस तरह से मैनेज करते हैं. आप जैसे स्लाइड के ऊपर देख रहे हैं, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी लिखा हुआ है. तो डिज़ास्टर के बारे में आपको पता है, जो बेसिक चीज़ें होती हैं, अर्थक्वेक हो गया, फ्लड हो गया, कहीं पे फायर लग गई, तो इस तरह की चीज़ें आप अगर उससे डैमेज ज़्यादा होता है तो उसको आप डिज़ास्टर के तौर पे कंसिडर करते हैं. उसकी हमारे यहाँ पे एक बॉडी है जो उन सब चीज़ों को मैनेज करती है. अब किस तरह से मैनेज करती है वो हमारे जो यहाँ पे प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर्स हैं वो आपको बताएंगे. उसके बाद आपको एक टूर करवाया जाएगा पूरे ऑफिस का कि ये DM ऑफिस किस तरह से फंक्शनल होता है. साथ में एक 4th फ्लोर पे हमारी एक लैब भी बन रही है, कंप्यूटर लैब, जो कि समीर सर और धीरज सर के कोऑर्डिनेशन से बन रही है. और डिजिटल साथी नाम से उसको इनॉग्रेट करेंगे. उसमें आप जैसे नन्हे मुन्ने बच्चों को हम लोग यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, कंप्यूटराइज्ड ट्रेनिंग्स. और अगर सर का सहयोग रहा तो AI टूल्स के ऊपर भी हम लोग वहाँ पे कोर्सेज रन कर सकते हैं. तो ये मेरे ख्याल से फ्यूचर के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा. इस तरह से आपको पूरे बिल्डिंग का आपको दौरा करवाया जाएगा. और उदय जी के बारे में तो आप जानते ही हैं कि समाज में पॉजिटिविटी कैसे लेके आई जाए, उसके ऊपर ये कितने समय से ये काम कर रहे हैं. इनके पब्लिकेशंस भी हैं और 2-3 सेमिनार्स तो मैंने भी अटेंड करे हैं. तो मुझको पर्सनल लेवल पे काफ़ी अच्छा लगा है. और आप लोग तो इनसे जुड़े ही हुए हैं, और जो लोग नहीं जुड़े हैं उनको भी आप लोग प्रयास करें कि इस मुहिम से जुड़ें, क्योंकि ये बहुत अच्छी मुहिम है. समाज में पॉजिटिविटी की बात करते हैं कि समाज को कैसे पॉजिटिव रखा जाए,
कैसे जो समाज में कुरीतियां हैं उसको दूर किया जाए। तो उदय जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस मुहिम को आप कंटिन्यू रखिए और हमारे तरफ से डीएम ऑफिस की तरफ से आपको जो भी सहयोग चाहिए होगा वो जरूर मिलेगा। चलिए आप कंटिन्यू करिए। ऑल द बेस्ट। The topic of AI is becoming more and more crucial, and your presentation today was a fantastic blend of practical knowledge and forward thinking insight. Thank you, Mr. Dev Bhalara, sir, for an incredible, insightful, and engaging session of AI tools. I now request Srimati Binda Manna from RJS PBH RJS Positive Media and Srimati Nirmala Devi from Silver Oak Public School to welcome Dr. Nitin Shakya, SDM Patel Nagar, New Delhi. I also request Shri Uday Kumar Manna from RJS PBH RJS Positive Media to present our grant to Dr. Nitin Shakya sir. Thank you, sir. Jai Hind. It is with immense pleasure and a deep sense of gratitude that I, Akanksha Manna, as the head of creative team at RJS PPH RJS Positive Media, stand before you today. I extend a very warm welcome to all. First and foremost, I wish to express our profound thanks to our distinguished chief guest and organizer, Dr. Nitin Shakya, IAS, SDM, Patel Nagar, New Delhi, and ex-Assistant Commissioner of Police, Danubes. Sir, we are truly honored by your presence today. In fact, it was your kind invitation that inspired the RJS Positive Yuva Toli to be a part of this significant event. The 434th Amrit Kal Ka Sakaratmak Bharat Uday program. Your encouragement has been invaluable and we are deeply appreciative of your continued support and commitment to your shared vision. Additionally, I welcome Srimati Tripti Vashne and Srimati Nirmala from Project Coordinator DDMA West. We are also proud to collaborate with the Trinity Foundation. A special welcome to Dr. Sameer Bhati, President and Director, Public Health Trinity Foundation, and Mr. Dheeraj Sehgal, Senior Manager, whose dedication to community well-being is truly commendable. I now acknowledge Shri Uday Kumar Manna, the founder of RJS PBH, RJS Positive Media, and his dedicated team for their unwavering hard work, vision, and dedication that are truly inspiring. On behalf of Ram Janki Sansthan, Positive Broadcasting House, I also extend a heartfelt welcome to all the respected dignitaries, RJS Positive Yuva Toli, students from the Silver Oak Public School, and the principal Srimati Nirmala Devi, and 8th class teacher Srimati Hina Khan, and other fellow participants who have joined us here today at the DM office near Rajouri Garden, Metro Station, New Delhi. Your presence signifies your belief in our mission and dedication to a positive future. Moreover, Sakaratmak Bharat Uday, Ek Parivar, Vishwa Ek Ghar, a visionary decade-long program spanning from 2025 to 2034. This initiative is a cornerstone of our efforts to contribute to the nation's progress
resonating deeply with the spirit of Azadi Ka Amrit Mahotsav, celebrating India's journey and aspiration. The themes chosen for today's online and offline program: motivational sessions, career counseling, Nasha Mukt Bharat, fitness, and positivity are not merely topics. They are the crucial pillars upon which we aim to build a resilient, empowered, and vibrant society. As the head of the creative team, I am particularly enthusiastic about how these sessions will inspire innovative thinking and collective action, fostering holistic growth for individuals and communities alike. To all our participants, I encourage you to immerse yourself in the discussions, actively share your insights, and leverage the valuable knowledge that will be imparted today. Your active engagement is vital to the success of this session. आपका start करें? Okay. इसके बाद क्या है? पीपीटी के बाद विजिट सेशन क्या होता है? जस्ट इंटरेक्शन ही है, 2 मिनट का। या 2 मिनट के लिए मैं इंटरेक्ट कर लेता हूँ, फिर आप लोग कंटिन्यू करिएगा। So, hello everyone. On behalf of District Magistrate West, I welcome you all. आप लोग यहाँ पे इतनी सुबह सुबह आ गए हैं and we have such a huge gathering. So, I thank you all for coming to DM Office West. So, ये हमने एक छोटा सा प्रोग्राम आपके लिए ऑर्गेनाइज किया है जिसमें हमने काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ रखी हैं। हमारा मेन मकसद है कि भारत सरकार का, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका एक अभियान है नशा मुक्त भारत अभियान। हम सबको मिलके भारत को नशा मुक्त बनाना है। अब बच्चे जो होते हैं वो फ्यूचर होते हैं इंडिया का, और अगर बच्चे ही अगर नशे की तरफ जाएंगे तो आप जानते हैं कि फ्यूचर जो है इंडिया का ब्राइट नहीं हो सकता है। तो हमारा फोकस है कि जो हमारे आप जो यूथ आए हैं यहाँ पे, आप लोग नशे से दूर रहें। अब नशे से दूर कैसे हो सकते हैं? सबसे पहले आपको फिज़िकल फिटनेस के ऊपर जोर देना है, आपको अच्छा खान पान खाना है, फिज़िकली फिट रहना है। सेकंड चीज़ है कि अगर आप लोग को एजुकेशन अच्छी मिलती है, सही डायरेक्शन में आपको एजुकेशन मिलती है, तो आप लोग नशे से दूर रह सकते हैं। अभी आपने देखा कि पहले के टाइम में पढ़ाई कितनी बोरिंग होती थी। अगर आपको कुछ भी डिफ़िकल्ट आ रहा है तो आप नहीं समझ सकते थे, लेकिन आज के टाइम में यूट्यूब है, और आज जैसे आपको सर ने बताया कि AI टूल्स हैं आपके पास। कोई भी टॉपिक अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो AI टूल से आप कितना इंटरेक्टिव वे में उस चीज़ को समझ सकते हैं। तो पढ़ाई को इंटरेस्टिंग आप अपने हिसाब से ही बना सकते हैं। सेकंड चीज़ है कि एक बार जब आपकी पढ़ाई ख़त्म हो गई है तो आपको सही कैरियर में जाना है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। तो उसके लिए भी आपके पास यहाँ पे टीम रहेगी जो आपको ब्रॉड ऑप्शंस के बारे में बताएगी। और जैसा कि DM ऑफिस जो होता है, हर एक ज़िले का एक डेवलपमेंट का सीनियर मोस्ट ऑफिस होता है, जहाँ पे जिलाधिकारी जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बैठते हैं, साथ में ADM होते हैं, और हर एक सब डिवीज़न के SDMs होते हैं। तो उसके बारे में आपको यहाँ पे बताया जाएगा। जो हमारी ये वेस्ट डिस्ट्रिक्ट है, यानी कि पश्चिमी ज़िला, इसमें 3 सब डिवीज़न्स हैं। एक है पंजाबी बाग, एक है राजौरी गार्डन, और एक है पटेल नगर। उसका मैप आपको दिखाया जाएगा कि किस तरह से दिल्ली में ये एक जो ज़िला है उसको हम लोग किस तरह से मैनेज करते हैं। आप जैसे स्लाइड के ऊपर देख रहे हैं, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी लिखा हुआ है। तो डिज़ास्टर के बारे में आपको पता है, जो बेसिक चीज़ें होती हैं, अर्थक्वेक हो गया, फ्लड हो गया, कहीं पे फायर लग गई, तो इस तरह की चीज़ें आप अगर उससे डैमेज ज़्यादा होता है तो उसको आप डिज़ास्टर के तौर पे कंसिडर करते हैं। उसकी हमारे यहाँ पे एक बॉडी है जो उन सब चीज़ों को मैनेज करती है। अब किस तरह से मैनेज करती है वो हमारे जो यहाँ पे प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर्स हैं वो आपको बताएंगे। उसके बाद आपको एक टूर करवाया जाएगा पूरे ऑफिस का कि ये DM ऑफिस किस तरह से फंक्शनल होता है।
साथ में एक 4th फ्लोर पे हमारी एक लैब भी बन रही है, कंप्यूटर लैब, जो कि समीर सर और धीरज सर के कोऑर्डिनेशन से बन रही है। और डिजिटल साथी नाम से उसको इनॉग्रेट करेंगे। उसमें आप जैसे नन्हे मुन्ने बच्चों को हम लोग यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, कंप्यूटराइज्ड ट्रेनिंग्स। और अगर सर का सहयोग रहा तो एआई टूल्स के ऊपर भी हम लोग वहाँ पे कोर्सेज रन कर सकते हैं। तो ये मेरे ख्याल से फ्यूचर के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। इस तरह से आपको पूरे बिल्डिंग का आपको दौरा करवाया जाएगा। अंत में हम लोग यहीं पे एकत्रित होंगे, आप लोगों को सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन दिया जाएगा और आप लोगों के लिए रिफ़्रेशमेंट का अरेंजमेंट किया गया है। तो अभी तो मैं आप लोगों से कुछ समय के लिए विदा चाहूँगा। आप लोग जो आगे वाले सेशंस हैं उसको आप लोग अटेंड करिए। फिर सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम और जब आप डीएम ऑफिस का जब आप विज़िट करेंगे तब मेरी आपसे मुलाकात होगी। ठीक है, शुक्रिया। अच्छा अच्छा। देखिए, आज का जैसे उदय जी ने कहा है कि कुछ क्वेश्चंस अगर आपके जहन में हैं, अगर आप कुछ भी अगर पूछना चाहते हैं रिगार्डिंग कैरियर काउंसलिंग या फिर सिविल सर्विस के बारे में या मेडिकल कैरियर का प्रोफेशन के बारे में, तो वो आप पूछ सकते हैं। उससे पहले मैं चाहूँगा कि हमारे जो दो यहाँ पे इम्पोर्टेंट पिलर हैं, समीर जी और उदय जी, उनके लिए आप लोग जोरदार तालियां हो जाएं। समीर जी और इनके साथी हैं धीरज जी और पूरी टीम है, ये लोग हमेशा हमारे साथ लगी रहती है कि किस तरह से हम एक पॉजिटिव देश की कल्पना करें, किस तरह से हम फिटनेस के ऊपर जोर दें, किस तरह से एजुकेशन सेक्टर को ऊपर लेके जाएं। और उदय जी के बारे में तो आप जानते ही हैं कि समाज में पॉजिटिविटी कैसे लेके आई जाए, उसके ऊपर ये कितने समय से ये काम कर रहे हैं। इनके पब्लिकेशंस भी हैं और 2-3 सेमिनार्स तो मैंने भी अटेंड करे हैं, तो मुझको पर्सनल लेवल पे काफ़ी अच्छा लगा है। और आप लोग तो इनसे जुड़े ही हुए हैं, और जो लोग नहीं जुड़े हैं उनको भी आप लोग प्रयास करें कि इस मुहिम से जुड़ें, क्योंकि ये बहुत अच्छी मुहिम है। ये समाज में पॉजिटिविटी की बात करते हैं कि समाज को कैसे पॉजिटिव रखा जाए, कैसे जो समाज में कुरीतियाँ हैं उसको दूर किया जाए। तो उदय जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस मुहिम को आप कंटिन्यू रखिए, और हमारे तरफ से डीएम ऑफिस की तरफ से आपको जो भी सहयोग चाहिए होगा वो ज़रूर मिलेगा। और आप लोगों को अगर कोई कुछ भी क्वेश्चन है तो वो आप पूछ सकते हैं। अगर कुछ भी आपके जहन में कुछ भी क्वेरी मेडिकल से रिलेटेड, कैरियर ऑप्शन से रिलेटेड, काफ़ी लोग हैं आपके पास, ज़रूरी नहीं है कि मैं ही उस चीज़ का जवाब दूँ। यहाँ पे तृप्ति मैडम है, निर्मला मैडम है, समीर सर हैं, उदय जी हैं, सभी लोग आपके जवाब देने के लिए रेडी हैं। कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन? अगर नहीं है तो मूव करते हैं। क्वेश्चन है किसी बच्चे को पूछना है कुछ भी पढ़ाई से रिलेटेड, हमें बहुत सारा होमवर्क मिलता है सर, किसी को कुछ नहीं चाहिए? एंड द स्टूडेंट फ्रॉम कालिंदी कॉलेज। कोई नहीं, बच्चों को पहले ये प्रेजेंटेशन दिखाते हैं, फिर उनको थोड़ा एक टूर पे लेके जाते हैं, एक मिनी पिकनिक करवाएंगे डीएम ऑफिस में, उसके बाद इंटरेक्शन करते हैं। ठीक है, चलिए आप कंटिन्यू करिए। ऑल द बेस्ट। आप कंटिन्यू करवाइएगा। ये दे सकते हैं लाइन दे सकते। स्कूल में ट्रेनिंग होती है, लास्ट महीने की कोई ट्रेनिंग नहीं हुई। आपका स्कूल है कहाँ का है? I request Srimati Tripti Vaishnav, Project Coordinator, DDMA West, for the presentation on District Disaster Management Authority. जैसे मैम ने मेरा इंट्रोडक्शन दे ही दिया। चलिए, सिल्वर ओक पब्लिक स्कूल कहाँ पे है ये? स्वरूप नगर में। एग्जाम से 19 नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट ना, नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में आता है शायद। मैं उनको देना। हाँ लगा नहीं यार, ये बोलेंगे स्वरूप नगर, स्वरूप नगर काम से नॉर्थ
नॉर्थ वेस्ट इज संझावला ना? यार मेरी आवाज ऐसे कौन कह रहे हैं? नहीं, स्वरूप नगर कम्स इन नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट। बेसिकली यहाँ से पहले मैंने 7 साल जो है वो नॉर्थ वेस्ट में ही काम किया है, एंड नॉर्थ वेस्ट में स्वरूप नगर नहीं आता, इसीलिए मैं इतना कॉन्फिडेंटली बोल पा रही हूँ, वो नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में आता है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपसे पूछा ट्रेनिंग्स, एक्चुअली अभी जो डिजास्टर मैनेजमेंट का काम चल रहा है ना, उसमें ये हो रहा है कि हम लोग ना एनडीआरएफ के कोलैबोरेशन में, एनडीआरएफ सुना है आपने, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स होती है ना, जैसे आपने देखा होगा लास्ट टाइम जब तुर्की में अर्थक्वेक आया था तो हमारे यहाँ से एक फोर्स गई थी वहां पे हेल्प करने, तो वो कौन सी थी, वो एनडीआरएफ की फोर्स थी, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। तो उनके कोलैबोरेशन में अभी हमारा जो चला हुआ है उसमें कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम और स्कूल सेफ्टी प्रोग्राम्स चले हुए हैं, तो वो ऑलमोस्ट सारे डिस्ट्रिक्ट्स में कंडक्ट किए जा रहे हैं। ठीक है, आपका स्कूल जिस डिस्ट्रिक्ट में आता है वहां पे मैं सौरभ को बोल दूंगी कि आपके स्कूल में भी वो एनडीआरएफ के कोलैबोरेशन का जो ट्रेनिंग है वो अरेंज कराए। इट इज वेरी फ्रूटफुल फॉर यू ऑल्सो कि लाइक बीइंग अ फर्स्ट रिस्पॉन्डर, मतलब अगर मान लो आपके स्कूल में या जहां आप रहते हो वहां पे कुछ हो जाता है, तो एज अ फर्स्ट रिस्पॉन्डर आप कैसे रिस्पॉन्ड करोगे। ठीक है, आपने कैसे क्या समझदारी दिखानी है, कैसे आप अपने आप को सेव करते हुए पब्लिक को सेव कर सकते हो, जो मतलब आप अपने लेवल पे कर सकते हो, टिल जब तक पुलिस आती है, फायर आती है, उससे पहले आप कैसे जो है इवैक्यूएट कर सकते हो अपने आप को सेफ रखते हुए। तो डिजास्टर मैनेजमेंट, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का काम क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का जो बेसिक मेन काम होता है वो होता है पब्लिक को अवेयर करना, प्रिपेयर करना, कि अगर कोई भी ऐसा इंसिडेंट होता है या ऐसी भी कोई आपदा आती है तो एज अ फर्स्ट रिस्पॉन्डर, देखिए हम या बाकी एक्सटर्नल सर्विसेज को टाइम लगेगा पहुंचने में, बट एज अ फर्स्ट रिस्पॉन्डर, क्योंकि आप वहां हैं, आप कम्युनिटी हैं, तो एज अ फर्स्ट रिस्पॉन्डर आप कैसे जो है रिस्पॉन्ड करेंगे, तो उसके लिए हमें आपको प्रिपेयर करना होता है। मैं ये नहीं कहती जितना हम बताएंगे आप सारा अडॉप्ट कर लोगे, कुछ भी अगर आपने टेक्निक्स जो है फॉलो कर ली तो हम बहुत सारी जानों को सेव कर सकते हैं। ठीक है, नीरज नेक्स्ट स्लाइड। ये अच्छा रुको, ये आपने देखा, ये हमारे डिस्ट्रिक्ट का मैप है। दिल्ली पता है ना आपको, दिल्ली क्या है, यूटी है, यूनियन टेरिटरी है ना। दिल्ली को 11 जिलों में बांटा गया है। कितने डिस्ट्रिक्ट है दिल्ली में? 11। ठीक है, उनमें से एक कौन सा है? वेस्ट, जहां पे आप अभी बैठे हो, और आपका स्कूल जहां है वो कौन सा है? नॉर्थ। ठीक है, मेरा जो जिला है वेस्ट जिला, वो चलो आगे चलो, मेरा जो जिला है उसका जो एरिया है अप्रोक्स 110.56 स्क्वायर किलोमीटर का है। ठीक है, और ओवरऑल दिल्ली का मैं कितना एरिया कवर करूंगी? 8.81%। मेरे डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्रीज जो हैं दिल्ली के जो अदर डिस्ट्रिक्ट हैं, कौन से 3 डिस्ट्रिक्ट से मिलती है? नॉर्थ वेस्ट से, सेंट्रल से और साउथ वेस्ट से। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट लाइक जैसे हम यहाँ से जाएंगे पीरागढ़ी साइड टुवर्ड्स घेवरा, वो हमारा नॉर्थ वेस्ट का बाउंड्री है। अगर हम इधर मायापुरी वाला साइड चले जाएंगे तो वो न्यू दिल्ली का बाउंड्री है, और यहीं हम आनंद पर्वत साइड चले जाएंगे तो वो सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट का बाउंड्री है। और मेरे डिस्ट्रिक्ट की एक बाउंड्री जो है वो दूसरे अदर स्टेट से भी कनेक्टेड है। वो कौन सा है? हरियाणा का झज्जर डिस्ट्रिक्ट। जब से हम टिकरी बॉर्डर क्रॉस करते हैं तो हम हरियाणा में एंटर कर जाते हैं, तो कौन सा उसका डिस्ट्रिक्ट शुरू होता है? झज्जर। ठीक, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट जो है 3, जैसा कि सर ने बताया, सब डिविजन में बटा हुआ है, रजौरी, गार्डन, पटेल नगर और पंजाबी बाग। हमारे डिस्ट्रिक्ट का जो सबसे लार्जेस्ट सब डिविजन है वो कौन सा है? पंजाबी बाग है। कहां से शुरू होता है? पंजाबी बाग का फ्लाईओवर जो आपने देखा होगा, अंडरपास और गोलो, वहां से लेके टिल टीकरी बॉर्डर तक, वो पूरा पंजाबी बाग है। हमारे डिस्ट्रिक्ट का एज पर 2011 का जो सेंसस हुआ था उसके हिसाब से पॉपुलेशन जो है अप्रोक्स 25,43,000 के अराउंड है, जो 2011 का सेंसस कह रहा है। अब तो बढ़ गई है। ठीक है, नेक्स्ट डिजास्टर मैनेजमेंट की जो हम बात कर रहे हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट 3 लेवल पे वर्क करता है, 3 लेवल पे काम करता है, नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। नेशनल लेवल इज नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जिसको लीड करते हैं हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, हर स्टेट में स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होती है, दिल्ली में भी है।
यूटीएसजे में दिल्ली में भी है। और हमारे यहाँ कौन हेड करते हैं? हमारे ऑनरेबल एलजी। जो स्टेट होते हैं उसमें सीएम जो होते हैं, ऑनरेबल सीएम, वो हेड करते हैं। और यूटी स्पेसिफिकली दिल्ली में कौन हेड करता है? ऑनरेबल एलजी। इस समय हमारे एलजी सर कौन है, पता है आप सबको? श्री विनय कुमार सक्सेना, वो इस समय हमारे दिल्ली के एलजी हैं। और डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी जहां पे अभी हम हैं, उसको कौन हेड करता है? डिस्ट्रिक्ट के जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं, यानी जिला अधिकारी जो होते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, वो जो है उसको हेड करते हैं। हाँ मैम, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूटी एंड एलजी? सी, यूटी इज यूनियन टेरिटरी। इन इंडिया स्टेट्स और यूटी, कितने स्टेट्स है हमारे यहाँ? 28 स्टेट्स हैं। ऐसे ही हमारे यहाँ 8 यूटीज हैं, यूनियन टेरिटरी। ठीक है, तो स्टेट बहुत बड़ा होता है, यूटी बहुत छोटा होता है। ठीक है, तो दिल्ली क्या है? यूटी है, दिल्ली स्टेट नहीं है। क्लियर? और एलजी इज लेफ्टिनेंट गवर्नर। ठीक है, लेफ्टिनेंट गवर्नर। इन यूटी में क्या होते हैं? लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं। और स्टेट में क्या होते हैं? गवर्नर होते हैं। ठीक, अब हमारा जो डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, वो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के सेक्शन 21 के अंडर कॉन्स्टिट्यूट हुआ है, मतलब बनाया गया है। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट होता है जो कि 2005 में आया था, दिसंबर में। ठीक है, उसका सेक्शन है 25, उसके अंडर डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का गठन हुआ। चेयर कौन करता है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। को चेयरपर्सन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, मतलब हमारा स्टेट जो है नोटिफाई करेगा हर डिस्ट्रिक्ट के लिए एक विधायक या जो भी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जो होते हैं, एमएलए, उनको, जो कि को चेयरपर्सन होंगे। सीईओ हमारे एडीएम सर होते हैं। देन जो भी डीसीपी होंगे, जैसे हमारे जिले में 3 डीसीपी लगते हैं, डीसीपी आउटर, डीसीपी रोहिणी, नहीं, डीसीपी आउटर, डीसीपी वेस्ट एंड डीसीपी सेंट्रल। तो वो हमारे मेंबर हैं। डीसी एमसीडी, हमारे पीडब्ल्यूडी के सुपरिटेंडिंग इंजीनियर, और जो हमारे डिस्ट्रिक्ट का चीफ डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर है वो। तो इन सबको लेके जो होती है डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की कमिटी कॉन्स्टिट्यूट होती है। जो सारा काम होता है इसी कमिटी से पास करा के ही इसी के अंडर होता है। डिजास्टर मैनेजमेंट is responsible for district planning, coordination, implementation for disaster management and take all necessary measures for purpose of disaster management in the district. तो DDMA वेस्ट जो है उसका मेन किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है? हमारी जो भी यहाँ आपदाएं आती हैं, जो भी इंसिडेंट्स होते हैं, ठीक है, उसकी प्लानिंग के लिए, उसके कोऑर्डिनेशन के लिए। लाइक मानिए कहीं फायर हुआ, ठीक है, अब वहां दिल्ली फायर सर्विसेज तो पहुंच गया, बट दे वांट जेसीबी, तो कौन उसको कोऑर्डिनेट करेगा कि वो जेसीबी ऑन टाइम वहां पहुंच जाए? डीडीएमए कोऑर्डिनेट करेगा। रिसोर्सेज इंसिडेंट साइट पे अवेलेबल कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? डीडीएमए की है। नेक्स्ट, ये हमारा इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर है। हमारा इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर मतलब एक कंट्रोल रूम होता है जो 24/7 फंक्शनल होता है। ठीक, इन दिल्ली एक स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर है डिजास्टर मैनेजमेंट का, जो कहाँ पे स्टेशन है? हेडक्वार्टर हमारा है कश्मीरी गेट पे, शामनाथ मार्ग आपने सुना होगा, वहां पे। ठीक है, स्टेट ईओसी कहते हैं। इसी तरह 11 दिल्ली के जिले हैं, तो 11 जिलों में डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम होता है, जिसको डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर कहा जाता है। हमारे डिस्ट्रिक्ट में जो हेल्पलाइन नंबर है वो ये जैसा आप देख रहे हैं, और स्टेट ईओसी का हमारा जो कंट्रोल रूम नंबर है वो है 1077। अच्छा, आप लोगों को पता है कि ERSS करके होता है, इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम, वो दिल्ली पुलिस से लिंक्ड होता है। ठीक है, 112 पे जब कॉल जाती है तो वो सेग्रीगेट करते हैं कि किस टाइप का इंसिडेंट है, उस अकॉर्डिंग वो उस डिपार्टमेंट को उसको ट्रांसफर करते हैं, यानी रेफर करते हैं। नेक्स्ट, हमारा रिसोर्स मैनेजमेंट, लाइक हमारे डिस्ट्रिक्ट में क्या क्या रिसोर्सेज अवेलेबल हैं और कहाँ कहाँ अवेलेबल हैं। मान लो मुझे फायर टेंडर कहाँ से मिलेगा, मुझे जेसीबी चाहिए, क्रेन चाहिए, कहाँ से मिलेगी, वो डेटा मेरे पास होना चाहिए, है ना। जैसे मैंने भी कहा फायर हुई, जेसीबी चाहिए, अब मैं कहाँ ढूंढूंगी कि जेसीबी कहाँ है?
तो मुझे ये पहले से आइडेंटिफाई करके रखना पड़ेगा कि मेरे डिस्ट्रिक्ट में जेसीबी कौन कौन से डिपार्टमेंट के पास होती है, जिस लोकेशन पे है उसका नियरेस्ट जेसीबी मुझे कहाँ से मिलेगा। तो उसके लिए एक IDRN इंडिया डिजास्टर रिसोर्स नेटवर्क पोर्टल होता है, ठीक है। आप जैसे कंप्यूटर्स जब आप यूज करते हैं तो जब आप डालेंगे IDRN पोर्टल, वो उस पे वेबसाइट आपको दिखेगा। तो उसमें ऑल ओवर इंडिया जितने रिसोर्सेज अवेलेबल है और जहां जहां अवेलेबल हैं, जिनकी एंट्री उस पोर्टल में हुई है, वो सब उसमें आपको दिखेंगे, ठीक है। आप डिस्ट्रिक्ट वेस्ट डालोगे तो डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में क्या क्या रिसोर्सेज अवेलेबल हैं वो सब उसमें आपको दिखेंगे। इवन एक फावड़ा, बेलचा, एक कहते हैं ना आपके मेडिकल इक्विपमेंट्स, जो भी है वटेवर, जितना भी हमारे पास डेटा है जो हमने अदर डिपार्टमेंट से मंगाया हुआ है, क्योंकि DDM इज लाइक अम्ब्रेला, उसी के अंडर सारे डिपार्टमेंट आते हैं जब भी कोई इंसिडेंट होता है ना। तो जो डायरेक्शंस पास होती हैं वो DDMA के थ्रू पास होती हैं। इमरजेंसी रिस्पांस किट हमने DDMA ने अपने आप को स्ट्रेंथन करने के लिए इन डिस्ट्रिक्ट वेस्ट हमने कुछ इमरजेंसी रिस्पांस किट प्रिपेयर कराई हैं, ठीक है। उसमें जो है उसको क्या कहा जाता है, इमरजेंसी रिस्पांस किट, उसमें ये आइटम्स जो और इक्विपमेंट्स हैं वो अवेलेबल हैं, लाइक स्ट्रेचर है, हेलमेट्स है, हेडलाइट, सर्च लाइट। आप लोगों को पता होगी सर्च लाइट क्या होती है, वो बड़ी सी टॉर्च होती है ना। हेडलाइट जो हम सर पे जो हेलमेट लगाते हैं उसके ऊपर लगाते हैं। एक ऐसे उनको डांगरी भी दी गई है पहनने को। फर्स्ट एड बॉक्स है, बेसिक फर्स्ट एड बॉक्स। देखिए वी आर नॉट टेक्निकली ट्रेन्ड, ठीक है, इन फर्स्ट एड। तो बेसिक फर्स्ट एड जो हम दे सकते हैं हम सिर्फ उतना ही दे सकते हैं। हम उससे ज्यादा देंगे और पता चला वो बेचारा सही होने की जगह और उसकी हालत बस्ट हो गई, ठीक है। आई प्रोटेक्शन गॉगल्स हैं। तो ये सब इक्विपमेंट्स जो है उस किट में अवेलेबल है। ये है, आपको सब दिख रहा है मटेरियल। इट्स लाइक अ स्ट्रेचर, डांगरी, हेलमेट एंड अ हेडलाइट, सर्च लाइट, बूट, गॉगल्स, मास्क है, आपका फर्स्ट एड बॉक्स है और हेडफोन है। हेडफोन क्यों यूज करते हैं? हेडफोन इसलिए यूज किए जाते हैं, लाइक अगर मान लो हम ऐसे कोई मेजर इंसिडेंट में गए हैं, ठीक है, तो जो हमारे जो ईयर्स हैं उनको सेफ रखने के लिए। यू नेवर नो, मान लो कोई चीज बिल्डिंग कोलैप्स है, कुछ मलबा गिर रहा है, कुछ हमारे उसको हो सकता है, कुछ ऐसे साउंड जो है वो हमारे कानों को मतलब कर सकते हैं, तो इसीलिए जो है हेडफोन पहना जाता है। ये अब आप देख रहे होगे कि जो किट मैंने आपको बताई ओवरऑल जो है अगर एक पर्सन पहनेगा तो ऐसा दिखेगा, वो डांगरी है, हेलमेट है, ऐसा रेडी हो जाएगा वो पर्सन। अभी तक का कंसेप्ट क्लियर है? मैं ज्यादा जल्दी भाग रही हूँ? नीरज नेक्स्ट करो। डिजास्टर मैनेजमेंट किट जो हमने ली है उसका SOP क्या है, वो कहाँ कहाँ रखी है स्ट्रैटेजिकली। हमने जो है 30 के अराउंड जो है वो किट्स जो है ये रेडी करवा के रखी हैं, जिसमें हमने तीनों सब डिविजन्स में कुछ डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं और कुछ हमारे स्टॉक में है, ठीक। लाइक सब डिविजन पंजाबी बाग हमारा सबसे बड़ा सब डिविजन है, तो वहां हमने 8 दिए हैं, क्योंकि वो उनका ऑफिस कहाँ है, नागलोई में है। पटेल नगर सब डिविजन में 7 है, रजौरी गार्डन में 5 है और हमारे पास 10 है। सुरक्षा साथी, अब सुरक्षा साथी क्या है? डिस्ट्रिक्ट वेस्ट ने, DDMA वेस्ट ने एक इनिशिएटिव लिया है सुरक्षा साथी, जिसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे डिस्ट्रिक्ट की जितनी पॉपुलेशन है हम उसको ट्रेन करें इन बेसिक सर्च एंड रेस्क्यू और फर्स्ट एड टेक्निक्स में, लाइफ सेविंग टेक्निक्स जिन्हें हम कहते हैं। हमने ये इनिशिएटिव 10 मई से स्टार्ट किया है। नेक्स्ट करो, ठीक है। अभी तक हम कहाँ कहाँ जो है ये ट्रेनिंग दे चुके हैं, हॉस्पिटल्स में दे चुके हैं। ये मैं अपने डिस्ट्रिक्ट की बात कर रही हूँ, मैं अदर डिस्ट्रिक्ट की बात नहीं कर रही हूँ, ये मैं अपने डिस्ट्रिक्ट की। सुरक्षा साथी जो है वो हमारे डिस्ट्रिक्ट का इनिशिएटिव है। अभी तक हमने हॉस्पिटल्स, नर्सिंग होम्स, डिस्पेंसरीज, RWAs, मार्केट ट्रेड एसोसिएशंस, कॉलेज है, आशा वर्कर्स होते हैं, DMRC, ANMs, इन सबको हम कवर कर चुके हैं, ठीक। नेक्स्ट करो। अभी तक हमने 86,894 पर्सन्स को ट्रेनिंग दे दी है। अब आप लगाओ, मई में हमने स्टार्ट करा, जून, जुलाई, अगस्त, 4 महीने हो गए। 4 महीने में हमने अराउंड 87,000 पर्सन्स को ट्रेनिंग दे दी है। बस इतना ही है शायद, हाँ वो नेक्स्ट पे जा रहा है, ठीक है। ये हमारा बेसिक था डिजास्टर मैनेजमेंट कैसे वर्क करता है,
क्या वर्क करता है, हमारे पास क्या क्या रिसोर्सेज हैं और हम कैसे कोऑर्डिनेट करते हैं अदर डिपार्टमेंट से। तो आई होप अगर किसी का क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है, देन विल गो फॉर अ विजिट। नशे का देखियो आप लोग सबसे बड़े सोर्स हो कि अगर कोई अगर नशा कर रहा है तो उसको कैसे बचा सकते हैं। आपके कोई साथी अगर आपको लगता है कि कोई पुड़िया वगैरह लेके आ रहा है या कोई इस तरह की दवा लेके आ रहा है तो आप तुरंत अपने जो क्लास टीचर हैं उनको आप बताइए, क्योंकि ये बहुत ही बुरी लत होती है। अगर आज की डेट में आप उसे बचाएंगे तो आप ये सोचिए कि उसको एक नई लाइफ दे रहे हैं, क्योंकि अभी तो बच्चे को कुछ पता नहीं होता है, लेकिन धीरे धीरे उसका पूरा शरीर जो है वो पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है इस नशे की लत से। फिर वो दूसरी चीज़ें भी, इलीगल एक्टिविटीज स्टार्ट हो जाती हैं। नशा करेगा तो पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, फिर चोरी करेगा उसके लिए, तो काफ़ी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ वगैरह में भी इन्वॉल्व हो जाता है। हाँ, तो आप बिल्कुल नहीं चाहते ना कि इस तरह से आपके किसी दोस्त के साथ हो। तो अगर आपको कभी भी अगर ऐसा लगता है कि कोई भी शख्स इस तरह की एक्टिविटी कर रहा है तो क्या करना है? हाँ, जरूरी नहीं है कि सबके सामने बताएं, अकेले में आके बता दीजिए ताकि आप लोगों का नाम भी डिस्क्लोज ना हो और उस बच्चे की भी लाइफ बच जाए, है ना। तो आगे से ऐसा करेंगे आप लोग? पक्का? हाँ हाँ, नहीं, अच्छा है, इस तरह की चीज़ें आप करिए। कभी भी अगर आपको लगता है कोई भी अगर नशा कर रहा है, और पढ़ाई तो आप लोग करते ही हैं, टीचर्स जो होते हैं सबसे बड़े गाइड होते हैं आपके, क्योंकि उनको पता है कि इस लेवल से आगे आपको कैसे लेके जाना है। कभी भी आपको कुछ दिक्कत होती है, आपको दो लोगों को सुनना है, आपके पेरेंट्स और दूसरे टीचर्स। ये लोग ही आपको अच्छे से गाइड करेंगे। और कुछ भी अगर ज़िंदगी में आपको कुछ भी दिक्कत आती है तो इन लोगों से ही सहारा मांगिए, इन्हीं लोगों से डिस्कस करिए। टीचर क्लास में स्ट्रिक्ट ज़रूर होती हैं, लेकिन उनका जो हार्ट होता है ना काफ़ी सॉफ्ट होता है। आप ये मत सोचिए अगर कोई डंडा लेके कोई टीचर डांट रहा है तो आप कोई परेशानी लेके जाएंगे तो नहीं बताएंगे। वो आपको परेशानी कुछ भी होगी तो उसका समाधान ज़रूर बताएंगे। वो बच्चों का चेहरा देख के पहचान जाते हैं कि बच्चे के साथ क्या चल रहा है। तो कभी भी कुछ दिक्कत हो, स्ट्रेस बिल्कुल मत लें, अपने टीचर्स के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ उस चीज़ को डिस्कस करें, और हर एक समस्या का समाधान होता है। इस चीज़ को आप लिख लें, अपने दिमाग में बसा लें। कुछ भी अगर परेशानी आती है आपको, कभी एग्ज़ाम में मार्क्स कम हो गए, कभी गलती से फेल भी हो गए, तो ये मत सोचिए कि लाइफ का एंड हो गया है। कई बार वो नई शुरुआत होती है आपकी। होता है कि आप दोबारा डबल स्पीड से आप लोग तैयारी करते हैं। तो ये सब चीज़ें छोटी मोटी होती हैं, लाइफ में चलती रहती हैं, सबके साथ होता है। आप लोग जितने लोगों से मिलेंगे, उनसे इंटरेक्ट करेंगे, पता चलेगा कि सबके साथ कुछ ना कुछ दिक्कतें रहती है, लेकिन उन समस्याओं से कभी नहीं डरना है। क्या करेंगे? कभी भी दिक्कत आएगी तो, और अगर टीचर्स ने बात नहीं सुनी तो, और अगर पेरेंट्स ने नहीं सुनी तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये लोग बात ना सुने। टीचर्स बात सुनती हैं, ऐसे ही पेरेंट्स भी बात सुनते हैं। ठीक है, तो मैं तो आपको शुभकामनाएं देता हूँ। ऑल द वेरी बेस्ट। इसी तरह से अच्छे से पढ़ाई करिए, अपने बड़ों का सम्मान करिए। कुछ भी समाज में कुछ भी गलत चीज़ें अगर आपको नज़र आती हैं तो अपने टीचर्स को, अपने पेरेंट्स को ज़रूर बताएं। ठीक है? हाँ, आपका 2019 का बैच है, तो आपको से कितना टाइम लगा था यूपीएससी क्रैक करने में, और जो रिवीजन की स्ट्रैटेजी थी वो मुझे जानना है। यूपीएससी क्रैक करने में 3 से 4 साल लगे थे, क्योंकि मैं ऑलरेडी वर्किंग था। जनकपुरी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में मैं आईसीयू की ड्यूटी कर रहा था, तो जॉब के साथ ही मैंने पढ़ाई करी थी, और कोचिंग वगैरह नहीं ली थी क्योंकि शेड्यूल उस तरह का नहीं बन पाता था। तो ये चीज़ आपको जाननी बहुत ज़रूरी है कि अगर आपके पास ऑलरेडी कुछ कमिटमेंट्स हैं तो उसके साथ भी आप अपने दूसरे लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। और 1-2 टिप्स मैं आपको बताऊंगा कि भाई जब भी आप पढ़ाई करते हैं तो रिवीजन को आप ज़रूर ध्यान रखें।
रिवीजन कोशिश करें कि हफ्ते में, महीने में एक आध बार रिवाइज करते रहें जो आपने उस टाइम पढ़ा है, ताकि जब आप एग्ज़ाम में, जब एंड में जब आपको ज़रूरत पड़ेगी तो वो आप देखेंगे बहुत ही ईजी हो चुकी हैं चीज़ें। तो पढ़ाई करते रहिए, रिवाइज करते रहिए, कोशिश करिए जो आपके नोट्स हैं उसको छोटे से छोटे फॉर्म में बनाएं उस नोट्स को। जैसे एक पैराग्राफ होता है ना, तो उसका अगर समराइज करेंगे तो एक दो शब्दों में उसको समराइज कर सकते हैं। तो उस तरह से आप देखेंगे कि पूरा का पूरा पेज जो है आपका 4-5 शब्दों में समराइज हो जाएगा। तो उसको अगर आप रिवाइज करेंगे तो बहुत जल्दी रिवाइज हो जाता है। तो इस तरह से स्ट्रेटजी बनाइए और पढ़ाई करिए। मोटिवेशन अप डाउन होता रहता है इंसान का, और पेरेंट्स भी कहते हैं कि जब ऑलरेडी आप सक्सेसफुल हो चुके हो तो क्यों आप दूसरी लाइन में जाना चाहते हो। लेकिन जब पेरेंट्स को आप समझाते हैं कि ये आपका मोटिवेशन है कि आप ब्रॉडर स्केल पे काम करना चाहते हैं, तो पेरेंट्स भी आपको सपोर्ट करते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि कुछ भी आपका लक्ष्य है उसको आप पेरेंट्स से ज़रूर डिस्कस करें, क्योंकि जब पेरेंट्स और जो आपके टीचर्स है जो आपके साथ हो जाते हैं, फिर कोई भी ताकत आपको हरा नहीं सकती है। सर, एक सवाल विद्यार्थियों के लिए बड़ा इंस्पिरेशनल है, क्योंकि आपका जीवन ही एक उन बच्चों के लिए मोटिवेशन होगा जो किस तरह से IAS PNDT PCPNDT होता है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड एक्रोनिम है, प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक्स। ये बहुत भारी टर्म है, हम थोड़ा इसको इजी करके समझते हैं, ठीक है। अल्ट्रासाउंड पता है, सबको पता होगा अल्ट्रासाउंड क्या होता है, क्या होता है। बोलो बोलो, डरना नहीं है। क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा स्कैन करते हैं। वेरी गुड। हाँ, अंदर के बॉडी पार्ट्स को देखते हैं। एक मशीन होती है, एक प्रोब होता है, हम टेक्नोलॉजी यूज करके हमारी बॉडी के अंदर के पार्ट्स उस स्क्रीन पे देख सकते हैं, ठीक है। इसके अच्छे यूजेस भी होते हैं और एक बुरा यूज भी होता है। किसी को पता है बुरा यूज क्या होता है? हम ये पता कर सकते हैं अंदर जो फीटर है इनसाइड द बॉडी वो क्या है, तो एक्चुअल में वो क्या है। और जब हम इसको मतलब डिस्क्राइब करते हैं कि वो बेबी एक्चुअल में मेल है या फीमेल, तो जैसे कि अभी जैसे हमको लगता है कि हम बेबी को फीड कर सकते हैं, तो नॉर्मल प्रेगनेंसी हो रही है तो डिलीवरी भी नॉर्मल हो रही है। अदरवाइज हम उसको क्या करते हैं ना, एबॉर्शन की तरफ ले जाते हैं। और जिसके लिए एक प्रोग्राम भी है, शायद आई थिंक 2011 में उसको इस्टेब्लिश किया गया था कि इस चीज को बंद किया जाए, ये इलीगल है। वेरी गुड। ये 2011 में नहीं, 1994 में ही आया था। इसके यूजेस ये है कि आप अपने अंदर के बॉडी पार्ट्स देख सकते हो, वैसे देख सकते हैं कि पेट में कोई गड़बड़ी तो नहीं है, पेट में कोई प्रॉब्लम होती है तो वो भी देख सकते हैं। हाँ, वेरी गुड। हम इससे डायग्नोस्टिक्स बोलते हैं कि अंदर की कोई प्रॉब्लम हो, हम उसको डिटेक्ट करके ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जो प्रेगनेंसी होती है नॉर्मली हम उसको फॉलो अप कर सकते हैं कि बेबी सही से ग्रो कर रहा है या नहीं। लेकिन अगर लोग इसको गलत काम के लिए इस्तेमाल करने लगे, वो पता करने के लिए कि लड़का है या लड़की, उसके बाद अगर लड़की है तो अबॉर्शन करा ले, ये इलीगल है और ये क्राइम है, ये बहुत बड़ा क्राइम है। इसी चीज के लिए PCPNDT एक्ट है जो कि 1994 में आया था, और इसीलिए हम इसको रेगुलेट करते हैं। रेगुलेट क्या करते हैं, हम ये चेक करते हैं कोई अल्ट्रासाउंड मशीन यूज करके गर्भपात की तरफ उसको तो नहीं लेके जा रहा, अल्ट्रासाउंड मशीन यूज करके जेंडर डिटेक्शन करके फिर उसको अबॉर्शन की तरफ नहीं लेके जा रहा। यही है PCPNDT एक्ट, और हमारी जो टीम है इसी चीज को एनफोर्स करती है, ठीक है। समझ आ गया सबको? थैंक यू। ये मैम हमारी सेक्शन ऑफिसर है, ठीक है। ये मैम आपको ब्रीफ करेंगे। नाम भी बताइए। नाम तरुणा गौतम, सेक्शन ऑफिसर। जितने भी यहाँ पर हमारे डिस्ट्रिक्ट में जितने भी ऑफिसर लगे हुए हैं यहाँ पर, उन सब का रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। यहाँ पर पर्सनल इंफॉर्मेशन, सारी पर्सनल फाइल, उन सब का लिव रिकॉर्ड, सैलरी वगैरह, ये सारा कुछ यहीं से होता है। ये एडमिन का काम है। यहाँ पे सिंगल विंडो, एक इस बार हम लोगों ने यहाँ पे सिंगल विंडो बनाया है फॉर, जैसे हमारे कोई भी रीजनल एक्टिविटीज होती हैं,
डिस्ट्रिक्ट में जैसे अभी रामलीला चल रहा है, तो रामलीला का अगर किसी भी समिति को रामलीला करना होता है तो उसको अलग अलग डिपार्टमेंट से परमिशन लेना होता है। दिल्ली पुलिस हो गया, फायर ब्रिगेड हो गया, ट्रैफिक पुलिस हो गया, एमसीडी हो गया, डीडीए हो गया, इन डिपार्टमेंट से परमिशन लेना होता है। तो उन सब परमिशंस को हम सिंगल विंडो पे, मतलब एक ही जगह पे उन लोगों को परमिशन दिलवाते हैं। तो ये सिंगल विंडो इस बार यहाँ पे बना है, जो हर रिलीजियस एक्टिविटीज के लिए यहाँ पे अब ऑल टाइम रहेगा। ठीक है, तो इस बार ही ये प्रावधान चालू हुआ है हमारे डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में, तो आगे भी ये कंटिन्यू रहेगा। तो इसका नाम दिया गया है सिंगल विंडो। ओके, थैंक क्या यू। ध्यान रखना पड़ता है रामलीला की आजकल परमिशन जैसे ले? जैसे रामलीला की परमिशन हम फॉर एग्जांपल सर ने पूछ रहे हैं, तो रामलीला की परमिशन देने से पहले समिति वाले आते हैं, वो अपनी एप्लीकेशन में हमें ये बताते हैं कि उन्हें किस किस चीज की परमिशन चाहिए। फॉर एग्जांपल कहीं रामलीला में झूले लग रहे हैं, कईयों में फूड स्टॉल्स भी लग रहे हैं, कईयों में नहीं लग रहे हैं, तो दुर्गा पूजा भी हो रही है, उनको पॉन्ड चाहिए नहीं चाहिए, इन सब चीजों को वो लोग अपना आइडेंटिफाई करते हैं उसमें कि हमें इस चीज की परमिशन चाहिए। तो उनके रिलेटेड जो भी डिस्ट्रिक्ट होते हैं, जो भी हमारे दिल्ली पुलिस की जो भी सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट है, वेस्ट डिस्ट्रिक्ट है, आउटर डिस्ट्रिक्ट है, 3 डिस्ट्रिक्ट हमारे पास आते हैं, तो उनसे हम इन लोगों को परमिशन अलॉट करवाते हैं। ठीक है, ओके। कंट्रोल रूम कैसे फंक्शन? ये डिस्ट्रिक्ट वेस्ट का कंट्रोल रूम है। जैसे पूरी दिल्ली में कॉलें चलती हैं, तो हर जगह की अलग कॉलें होती है। तो अभी मैं दीपक, ये ईओसी का कंट्रोल रूम है डिजास्टर का। जब दिल्ली में कॉलें आती है तो हर डिस्ट्रिक्ट में कॉलें बट जाती है, तो ये है वेस्ट डिस्ट्रिक्ट। अगर आप हेडक्वार्टर में कॉल देंगे 112 पे, या फिर इसका भी हेल्पलाइन नंबर है 1077, ये डिस्ट्रिक्ट का नंबर है। 1077 पे जब भी कॉल करेंगे, कोई दुर्घटना आपदा होती है, आग लग गई, कोई बिल्डिंग गिर गई, या रोड में कहीं एक्सीडेंट भी हो गया, तो आपको 1077 में कॉल देनी है, या 112 पे। वहां से कॉल डिस्ट्रिक्ट में आएगी, यहाँ से सभी डिपार्टमेंट को कॉल करी जाएगी। पुलिस हो गया, एमसीडी हो गया, पीडब्ल्यूडी हो गया, जिससे रिलेटेड होगी कॉल उसी को दी जाएगी, और वो जाके वहां पे मदद करेंगे। मान लीजिए कि रोड में एक्सीडेंट हो गया, तो कौन काम करेगा? पुलिस वाले काम करेंगे, ट्रैफिक वाले काम करेंगे। अगर वहां पे किसी को उठाना है तो कैट्स वाले काम करेंगे। कैट्स में 102 नंबर है। अगर आप 1077 पे भी कॉल कर देते हैं तो सभी जगह अपने आप ही कॉल चली जाएगी। कितना टाइम लगता है? 10 से 15 मिनट में, 15 मिनट के अंदर ये सब मौके पहुंच जाती है। देखिए, इट डिपेंड्स ऑन चैनल्स ना। आपने कॉल कर दिया, आपने जो कम्युनिकेट किया उसका ऑथेंटिसिटी पहले चेक करना पड़ता है। आपने 1077 में दिया, 1077 से जो आपने एड्रेस बताया उस अकॉर्डिंग कौन सा डिस्ट्रिक्ट लगता है उसको फॉरवर्ड होती है। इसमें कितना टाइम लग जाता है? हार्डली 1 मिनट, 1 मिनट लगता है, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी आइडेंटिफाइड होता है कि कौन सा एरिया कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है। वहां से वो कॉल फॉरवर्ड होती है कंसर्न डिस्ट्रिक्ट में। प्राइमरीली कंसर्न डिस्ट्रिक्ट क्या करेगा, पहले उस कॉल का ऑथेंटिसिटी चेक करेगा। कई बार ये होता है फेक कॉल भी होती है, तो पहले वो कॉल का ऑथेंटिसिटी चेक किया जाएगा। वो किसे किया जाएगा? दिल्ली पुलिस से किया जाएगा। ठीक है, कॉलर से भी किया जाएगा। कई बार क्या होता है, कॉलर ने कॉल कर दिया, उसके बाद उसका फोन स्विच ऑफ हो गया या नॉट रीचेबल हो गया, तो वो जो टाइम है डिपेंड ऑन कि कॉलर कितना एक्टिव है, उस पर बहुत सारी चीजें मैटर करती है। ठीक, तो जैसी कॉल आई, क्लियर किया हमने कि ऑथेंटिक है कि नहीं है, उसके बाद सारी सर्विसेज एक्टिवेट होती है। मेन जो सर्विसेज होती हैं वो हमारी दिल्ली पुलिस, दिल्ली फायर सर्विसेज, कैट्स, एम्बुलेंस, BACS हो गया आपका, MCD हो गया, ये मेन सर्विसेज हैं जो फर्स्ट रिस्पॉन्ड करेंगे। देखिए, दिल्ली पुलिस कॉर्डन ऑफ करेगी एरिया, फायर ने सर्च एंड रेस्क्यू करना ही है, BACS ने इलेक्ट्रिसिटी कट करना ही है वहाँ का, कैट्स एम्बुलेंस ने क्या करना है, वहां से अगर कोई विक्टिम है, कैजुअलिटी है, उसको मूव आउट करना है, जो सर्च एंड रेस्क्यू करके उसको लाएंगे। हमें CDMO डॉक्टर से टाई अप करना पड़ता है, नियरेस्ट हॉस्पिटल जो होता है जहाँ पे वो इंजरी को लेके जाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद बाकी सर्विसेज जब उनकी जैसे जैसे जरूरत होती है, जिन जिन रिसोर्सेज की, उस अकॉर्डिंग फिर उनसे कोऑर्डिनेट किया जाता है कि वो टाइमली वहाँ पे रिस्पॉन्ड करें। हाँ, सारे बच्चे यहाँ पर, हाँ, तो कई बार रोड पे एक्सीडेंट हो जाता है, हाँ। तो बच्चे क्या स्टेप्स ले सकते हैं? देखिए, रोड पे अगर एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, फर्स्ट यू हैव टू कॉल 1077 एंड 112। कोई भी आप किसी भी नंबर पे करो, क्योंकि यू आर नॉट, मतलब इतना आप वेल वर्स नहीं हो कि अगर एक्सीडेंट हो गया तो आप उसको कहाँ ले जाओगे, कहाँ नहीं जाओगे। फर्स्टली यू कॉल, और उस समय जो आपकी समझ काम करेगी
उसमें ये होता है कि हम पहले तो नियरेस्ट हॉस्पिटल ही देखेंगे कि कौन सा है, ठीक है। हमें ये नहीं देखना है कि whether गवर्नमेंट है कि प्राइवेट, ठीक। फर्स्ट उसको जो है कॉल करके वहां से जितनी जल्दी हो सके मूव आउट कराना, क्योंकि उसका इंजरी हमें बढ़ाना नहीं, ठीक। तो सबसे पहले आपके पास देखिए फोन ऑलमोस्ट सबके पास होता है, 1077 भी टोल फ्री है, 112 भी टोल फ्री, तो यू जस्ट कॉल 1077 और 112, सर्विसेज मतलब ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएंगे। जैसे पीछे भी अभी स्कूल में धमकियां आ रही थी बम वगैरह की, हाँ, तो उसके रिगार्डिंग क्या करना है? जैसे मैम आपने मुझसे बॉम्ब थ्रेट का जो आ रहा था, जैसे ही हमारे पास वो इन्फॉर्मेशन रिसीव हुई, फर्स्ट वील एक्टिवेट आवर कंट्रोल रूम। दिल्ली पुलिस से हम क्लोज टच में थे क्योंकि उनकी बॉम्ब डिटेक्शन टीम है, तो पहले बॉम्ब डिटेक्शन टीम ही अंडर जाएगी डिटेक्ट करने को। इफ देयर इज एनी बॉम्ब, देन बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड आता है जो उसको डिस्पोज करेगा। तो जब भी ऐसा कोई थ्रेट या ऐसा कोई वो चलता है और हमारे कंट्रोल रूम में इन्फॉर्मेशन आ जाती है, तो वी आर क्लोजली इन टच विद दिल्ली पुलिस कि भाई वहां पे कोई फेक इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, वेदर बॉम्ब डिटेक्ट हुआ कि नहीं हुआ। बाकी हम इन द मीन टाइम हमारी जितनी इमरजेंसी सर्विसेज हैं, फायर हो गया, आपका BACS हो गया, इन सबको हम अलर्ट मोड पर डाल देते हैं कि इन केस अगर जरूरत पड़ी सो दे विल रिस्पॉन्ड। तो इस केस में भी स्कूल को 1077 भी करना? डेफिनेटली 1077 और 112। 112 इज अ नेशन वाइड नंबर, ठीक है, एंड 1077 इज स्टेट का EOC। मेरा भी एक क्वेश्चन। हाँ, एक्चुअली स्कूल में हम मतलब घर पे किसी ने मर्डर के हम लोग को थ्रेट दिया, हाँ, और उन्होंने कॉल किया पुलिस वगैरह, जिन्हें भी आपने बोला, और आपने बोला 15 मिनट्स वो प्रोसेस करने में टाइम लगता है। देखिए जैसे आपने कहा किसी ने आपको थ्रेट दिया, ठीक है, धमकी दी, किसी ने मारने की धमकी दी, तो ये आपको जो मारने की धमकी दी, एक पहली बात तो ये डिजास्टर नहीं है, ठीक है। ये आपका जो भी पर्सनल ग्रज चल रहा होगा, जो भी पर्सनल हुआ है, आप 112 पे जब कॉल करोगे ना, अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन कि आप क्या बता रहे हो, वो उस कॉल को उस अकॉर्डिंग डाइवर्ट करते हैं। एड्रेस आने में आपको टाइम लगेगा, उस टाइम में मेरे को नहीं आना है। जब 112 पे जाएगी, जैसे आपने थ्रेट वाली बात करी ना, वो दिल्ली पुलिस से कंसर्न करता है, तो कंसर्न एरिया SHO और देयर स्टाफ पुलिस को एड्रेस पे आने में टाइम लगेगा। PCR आती है पहले, सबसे पहले PCR टाइम लगेगा। डिपेंड ऑन कॉल कहाँ गई है, कौन सी PCR पे गई है और मूवमेंट ट्रैफिक का क्या है। उसी टाइम में अगर उनके साथ उनका मर्डर हो गया तो यार आपने कॉल कर दी, अगर आपने कॉल कर दी तो PCR डेफिनेटली पहुंचेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि PCR ना पहुंचे। यार देखो, ये डिपेंड ऑन आप कहाँ से मूवमेंट कर रहे हो, कितना टाइम लग रहा है, आपने कितनी टाइम पहले दी है। अब आपको आपके सामने खड़ा है और उसके बाद आपका आ गया और हमें मारने आ रहा है, तो ये आपकी सिचुएशन पे डिपेंड करती है। मतलब आशंका अगर ऐसा है कि हो सकता है, तो फिर पुलिस को पहले से कंप्लेंट करने से कुछ बेटर है। आप पहले से कंप्लेंट फाइल करो कि हमें इससे थ्रेट है। एक आपको इमीडिएट पता है कि अच्छा मेरा इससे दुश्मनी हो गया है तो ये कुछ करेगा, ठीक है, तब तक उसने कुछ नहीं किया, देन यू फाइल अ कंप्लेंट, ठीक है, पहले। तो जब आपकी कंप्लेंट पहले ही फाइल होगी ना ऑलरेडी, तो पुलिस उतनी ही और सतर्क रहती है, ठीक है। उनको लगता है अब एकदम से आपको नहीं पता कि कौन सा पर्सन आपकी कौन सी बात को कैसे लेगा, और वो सडन आप पे अटैक करे, तो उसमें जो टाइम है मेन वो लगेगा। PCR एक चीज ये कहना चाहूंगा, अगर हम कहीं पे भी कॉल करते हैं ना, किसी दुर्घटना होने पे, कहीं मान लो बिल्डिंग गिर गई, आग लग गई, रोड एक्सीडेंट हो गया, अगर हम खुद कॉल कर रहे हैं तो हम ये रहें कि हम वहाँ रहें, उसका एड्रेस सही से बता पाए। और अगर वहाँ पे कहीं आने की दिक्कत है तो पहले ही क्लियर कर दे कि यहाँ पे दिक्कत है, तो क्या आने में उनको टाइम नहीं लगेगा। ज्यादातर कॉलर क्या करते हैं, एक बार कॉल करा और उनमें 2 कॉलें आ जाएंगी ना, तो पहले तो स्विच बंद कर देंगे, फिर कहेंगे हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है। कॉल करने के बाद कहेंगे जी हमने तो देखा था, अब हम है नहीं। क्वेश्चन है क्योंकि हम सोसाइटी में फिलहाल रह रहे हैं जहाँ पे सब लोग डरे हुए हैं। एक तो टेक किड्स बन चुके हैं और एक तो टेक किड्स हो चुके हैं कि हमें दुनिया से फर्क ही नहीं है। दूसरा, हमें हमारे पेरेंट्स डरा के रखते हैं कि नहीं आपको ये नहीं करना, वरना पुलिस केस में फंस जाओगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे ताकि बच्चे मोटिवेटेड रहे? हाँ, अब पहले ये होता था कि सब डरते थे पुलिस से, लेकिन अब ये है नहीं डरते सर, जिन्होंने मर्डर किया या फिर जिन्होंने जिनके नहीं, मर्डर केस तो अलग हो गया, मैं सिर्फ डिजास्टर की बात कर रहा हम डिजास्टर के बारे में आपको बता सकते हैं। कानून सपोर्ट में क्या हूँ। ना ही ये कोई But you have to file a complaint first. आप ऐसा क्या ओपिनियन मतलब बच्चों को बताना चाहो कि आपको डरने की जरूरत नहीं है, आप सामने आओ और आप अपनी बात को कंप्लेन करके। देखिए, डरने की किसी को जरूरत नहीं होती। अगर आप सही हो तो किसी को किसी से डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है।
हर जो है एनवायरनमेंट में, हर सोसाइटी में कुछ ना कुछ ऐसा होता है, ठीक है। तो बट वी हैव टू अवेयर, ठीक है, कि हमें हमारे बच्चों को और जो भी हमारे संग हमारे रिलेटिव हैं उनको हमने अवेयर करके रखना है। सी, अगर हम इन चीजों से दूर रहें तो हमारे लिए ही अच्छा है, क्यों हमें उस संगत में जाना है, ठीक है। बट अगर आपको लगता है कि एग्जैक्टली मुझे इसी पर्सन से खतरा है, तो फर्स्ट यू हैव टू फाइल अ कंप्लेंट अगेंस्ट हिम, और वो भी पुलिस में। तो सर्टिफिकेट होंगे SC ST OBC, है ना, तो ये वही सेल है। ये प्रदीप जी आपको ब्रीफ करेंगे ये प्रोसेस कैसे चलता है। क्या पूछना क्या है ना, आप सर्टिफिकेट से रिलेटेड कोई क्वेरी है या क्वेश्चंस है, कैसे बनते हैं, वो सब बता दें। प्रोसेस क्या है? ई डिस्ट्रिक्ट पे जाके ऑनलाइन अप्लाई करना है। सबसे पहले अपनी आईडी बनानी है, अगर नहीं बनी, बच्चा छोटा है तो फादर की आईडी से अटैच करके उसके बाद ऑनलाइन अप्लाई करना है, चाहे वो ओबीसी है, SC है, या कुछ भी, कोई भी सर्टिफिकेट है। तो यही प्रोसेस है। पहले हमारे रिक्वायरमेंट हर सर्टिफिकेट की अलग अलग होती है। जैसे इनकम में 6 मंथ बैंक स्टेटमेंट चाहिए, और बिजली बिल चाहिए, और आधार कार्ड। पहले ये हमारे 3 चीजें मैनुअली बनते थे, तो उसमें बहुत टाइम लग जाता था, बनते भी नहीं थे, लोगों को बार बार ऑफिस में विजिट करना पड़ता था। उसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए हम लोगों ने एक ई डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट के थ्रू इसको ऑनलाइन अब आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। आपको बेसिकली ई डिस्ट्रिक्ट साइट पे जाना है, ठीक है। आपका जो भी सर्टिफिकेट आप बनवाना चाहते हैं उसके लिए आपको एप्लीकेशन फाइल करनी है। देन विद इन 7 डेज आपको इस ऑफिस में विजिट कर अपने जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उस सर्टिफिकेट से रिलेटेड वो यहाँ इस विंडो पे शो करने हैं, और उसके बाद 14 डेज में आपका जो सर्टिफिकेट है डाउनलोड होकर आपकी आईडी पे आ जाएगा। आपको अगेन ऑफिस आने की जरूरत नहीं पड़ती। मैडम क्वेश्चन था एक, जैसे किसी का दिल्ली से बाहर का सर्टिफिकेट है, वो भी सेम, तो दिल्ली का बनवाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या प्रोसेस? तो उसके बेस पे अप्लाई कर सकते हैं। कि बेस वहीं का रहेगा, और अब हमें दिल्ली का चाहे आप यूपी से है, हिमाचल से है, किसी भी स्टेट से है, तो बेस तो वही रहेगा, बट बन दिल्ली से जाएगा। दिल्ली का बन जाएगा। अगर प्रूफ वगैरह चाहिए, हाँ जी, प्रूफ चाहिए। जैसे आपका आधार कार्ड है, जिसका वहाँ का सर्टिफिकेट है उसका आधार कार्ड, वहाँ पे वेरिफिकेशन जाती है। डॉक्यूमेंट हमें दिल्ली के चाहिए, आधार कार्ड के। हाँ, एक क्वेश्चन और था सर मेरा, मैडम जैसे EWS के लिए अभी जो OBC है, मिनिमम जो इनकम सर्टिफिकेट है कितने का होना चाहिए? 8 लाख। 1 लाख मैडम अभी तो चेंज हो गया ना? नहीं, अभी तो 8 लाख ही चल रहा है मैडम। 8 लाख OBC जी, नहीं EWS के लिए। EWS के लिए 1 लाख। हाँ, पहले 1 लाख था। नहीं 8 लाख की स्टार्टिंग से मैडम 1 लाख का नहीं, 8 लाख ही है EWS का इनकम का। जिसकी इनकम 8 लाख से कम है वो EWS और इनकम बनवा सकता है। वैलिड नहीं। अच्छा मैडम, मैं एक बात मेरे तो बच्चे की एडमिशन के लिए भर रहे हैं फॉर्म, तो उसमें 1 लाख ही चल रहा है। 1 लाख ये स्कूल की तरफ से कुछ है, हमारी साइड से ऐसा कुछ नहीं है। जिसकी 1 लाख की लिमिट है हम उसका ही बनाते हैं, जिसकी 7 या 7.5 है उसका भी बना के। ओके, चलिए हमारे एक डाक सेक्शन है, यहाँ पर सारी डाक हमारे ऑफिस की रिसीव होती है, ठीक है। यहाँ डायरी होने के बाद जो कंसर्न डिपार्टमेंट है या कंसर्न पर्सन है उनको यहाँ से ये फॉरवर्ड कर देते हैं। ये हमारा डाक सेक्शन है, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट का डाक सेक्शन, ठीक है। ओके, मैं अशोक कुमार, SO2 DM वेस्ट, यहाँ से 2 साल से मैं वर्किंग हूँ। तो आप बताइए, आपको क्या जानना है यहाँ के बारे में, कुछ पूछना चाहते हैं तो? कौन से स्कूल से आए? सिल्वर ओक, यही राजौरी गार्डन से। जीटी करना। ओके, कुछ एक्टिविटीज के बारे में बताइए क्या? बेटा ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का ऑफिस है वेस्ट डिस्ट्रिक्ट का। तो आपको तो कोई आइडिया होगा नहीं, अभी आप काफ़ी छोटे हैं, तो यहाँ पे क्या काम होते हैं क्या नहीं होते हैं। आपने कुछ सर्टिफिकेट्स के बारे में सुना होगा, सुना है? कौन कौन से सर्टिफिकेट्स आपने सुने हैं आज तक? आप लोगों ने भी सर्टिफिकेट सेल विजिट किया ना? कौन कौन से सर्टिफिकेट के बारे में सुना है? व्हाट इज SC? आपको पता है क्या है SC? नहीं, क्या है? शेड्यूल कास्ट। ओके, और OBC? ओके, तो वो सर्टिफिकेट्स जो हैं, जो भी कास्ट कैटेगरी कम्युनिटी सर्टिफिकेट जो होते हैं, वो सब यहीं से इशू होते हैं।
इसके अलावा यहाँ पे सब इकोनॉमिक और वीकर सेक्शन के भी यहाँ से होते हैं, जो EWS बोलते हैं, उसके भी। इसके अलावा इनकम से रिलेटेड जो है, जैसे आपके स्कूल में बच्चे पढ़ते भी होंगे EWS ग्रुप में, और ये सब वो सब यहीं से इशू होते हैं। तो पर्टिकुलर वेस्ट डिस्ट्रिक्ट का है। हमारे यहाँ पे 3 डिविजन्स हैं जो हमारे अंडर में फंक्शनिंग है। एक मंजाई बाग है, एक पटेल नगर है, और एक राजौरी गार्डन है। ठीक है। इसके अलावा बेसिकली आपने देखा होगा कि कई बार होता है कि सीनियर सिटीजन्स को बच्चे परेशान कर रहे हैं, उनके बच्चे मतलब उनका सन या उनकी डॉटर इन लॉ, उनकी बहू, तो उस केसेस में भी यहाँ पे हियरिंग होती है। DM मजिस्ट्रेट जो हैं वो कोर्ट लेती हैं, तो उसमें एविक्शन कराया जाता है। जो बच्चे परेशान करते हैं पेरेंट्स को अननेसेसरी, उनको घर से निकाल देते हैं, ऑर्डर करते हैं इस तरह से। ठीक है। तो उसके लिए प्रॉपर कोर्ट लगती है। इसके अलावा पूरा लैंड से रिलेटेड जो भी है डिस्ट्रिक्ट में, पूरे डिस्ट्रिक्ट में वो यहीं से होता है। पूरे एरिया में कहीं पोल्यूशन हो रहा है, उससे रिलेटेड काम भी सब यहीं से होते हैं। आपके स्कूल में आपने देखा होगा जैसे डिवॉर्मिंग की टैब दी जाती है, आपको टैबलेट्स वगैरह दी जाती है ना टाइम टू टाइम, तो वो सब भी जो है यहीं से मैनेज होता है। हम ही आपके जो कंसर्न DD वगैरह होते हैं डिस्ट्रिक्ट में, जो डिप्टी डायरेक्टर होते हैं एजुकेशन के, वो कोऑर्डिनेट करते हैं और फिर हम फिक्स करते हैं और उसी पे होता है। इसके अलावा कोई आपका जैसे कोई एनुअल फंक्शन होता है स्कूल में, तो उसको भी DM जाती हैं, उसमें देखती हैं। तो डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड जो भी काम होता है वो सब यहीं से होता है ऑपरेट। आयुष्मान कार्ड वगैरह हेल्थ से रिलेटेड है, वो भी मतलब पूरे डिस्ट्रिक्ट में जो भी हो गया, हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, और ये सर्टिफिकेट से पब्लिक सर्विस के लिए जो भी होगा, ये सब यहीं से होता है। ओल्ड एज पेंशन नहीं, वो सोशल वेलफेयर वगैरह है। और आपको कुछ पूछना हो तो बताइए। मुझे कुछ पता कि OBC सर्टिफिकेट में 2 वैरायटी होती है। हाँ, OBC सर्टिफिकेट में 2 वैरायटी है। वो एक्चुअली यहाँ दिल्ली में जब रेजोल्यूशन पास हुआ 93 में, वो एक अलग डेट थी, और एक सेंट्रल गवर्नमेंट का वो अलग है। तो हमारी जो लिस्ट है कैटेगरीज की, उसमें 2 कैटेगरी की हुई है। एक सेंटर ने अपनी लिस्ट निकाली थी, एक दिल्ली ने जो है अपनी लिस्ट निकाली थी। तो दिल्ली के अंदर 2 OBC सर्टिफिकेट्स बनते हैं, एक फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पर्पज के लिए और एक दिल्ली पर्पज के लिए। तो दिल्ली से रिलेटेड जो भी जॉब हैं उसमें मतलब दिल्ली का ही चलता है, और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है जैसे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की या यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की, UPSC वगैरह, वो सेंट्रल बॉडी है, वहाँ पे जो है सेंटर का ही चलता है। इन दोनों की वैलिडिटी कितने में? उसकी वैलिडिटी एज ए सच लाइफ टाइम होती है, बट उसमें एक क्लोज है क्रीमी लेयर का। तो जिनकी इनकम मोर देन 8 लाख होती है एनुअल, वो क्रीमी लेयर में आ जाते हैं। उनको सिर्फ फिर एज रिलैक्सेशन मिलता है, अदरवाइज रिजर्वेशन वैसी नहीं मिलती पोस्ट के अगेंस्ट। तो जो बिलो 8 लाख है वो 6 मंथ्स में आप बनवा सकते हैं। पूरे वैसे फाइनेंशियल ईयर का बनता है, वो हर साल बनवाना पड़ता है। सर इसका कहीं भी अप्लाई रिन्यूअल करें। टाइम क्या होता है OBC सर्टिफिकेट का? OBC सर्टिफिकेट 1 टाइम है, बच्चा भी बनवा सकता है, लाइफ टाइम वही चलेगा। और अगर सर जैसे सिर्फ NCL family बनाना में पड़ेगा। किसी का भी नहीं बना है OBC सर्टिफिकेट, बट वो आती है कास्ट में, तो वो क्या प्रूफ लगा के तो उसमें उनके जहाँ से वो बिलोंग करते हैं, अगर वहाँ उस पर्टिकुलर कैटेगरी में है और वो कैटेगरी यहाँ भी फॉल करती है, तो वो यहाँ करते हैं। टाइम में वो चीजें रजिस्टर्ड नहीं होती थी प्रॉपर, तो फिर उसकी इंक्वायरी होती है। यहाँ से जो है लेटर लिखते हैं, जहाँ से वो बिलोंग करते हैं, जो उनका नेटिव प्लेस है, वहाँ से क्लैरिफिकेशन सॉर्ट करते हैं, उसके बाद इश्यू होता है। अदरवाइज दिल्ली के लिए, हाँ, अदरवाइज दिल्ली के लिए जो 93 का क्लोज है, 93 से पहले का आपको रेजिडेंस का प्रूफ देना पड़ता है, तभी आप बनवा सकते हैं। एक ही सर्टिफिकेट एक जगह से बनवा सकते हैं OBC? हाँ, एक पूरी दिल्ली में एक जगह से ही बनवाएंगे आप, हर डिस्ट्रिक्ट से भी। सब ऑफिस से उससे हो रखा है, गांव से दिल्ली से नहीं बनवा सकते। तो सर दिल्ली NCR वाली और जो सेंट्रल गवर्नमेंट में जो कास्ट, शेड्यूल कास्ट जो भी मतलब नाम आते हैं, वो डिफरेंस है कुछ? शेड्यूल कास्ट में तो ऐसा डिफरेंस नहीं है, OBC में डिफरेंस है। मैं आप जैसे एक एग्जांपल बताता हूँ, जैसे जाट कम्युनिटी जो है वो सेंटर में नहीं है OBC में, दिल्ली स्टेट के अंदर है। इवन यूपी में नहीं है, राजस्थान में नहीं है, हरियाणा में भी नहीं है, लेकिन दिल्ली में है। बट वो ओनली फॉर दिल्ली के लिए है वो। हाँ, सिर्फ दिल्ली में ही एप्लीकेबल होगा। अगर कोई बनवाता है और उससे वो एज्यूम करे कि मैंने JEE मेन कर लिया, JEE एडवांस कर लिया और उसको IIT जाना है, तो वहाँ पे जाट कम्युनिटी जो है OBC में नहीं होगी। दिल्ली के जो कॉलेज हैं उनके लिए होगी। सर OBC में नॉन क्रीमी लेयर और क्रीमी लेयर होता है? हाँ, नॉन क्रीमी लेयर होता है जी, जिनकी अर्निंग जो है एनुअल हर सोर्स से बिलो 8 लाख, दे आर नॉन क्रीमी लेयर्स। अगर मोर देन 8 लाख है, फिर वो उस क्रीमी लेयर्स में आ जाते हैं। ये
तो क्रीमी लेयर का जो है हर साल बनता है सर्टिफिकेट, वो भी डिवीजन से ही बनता है, जहां भी आपका एरिया फॉल करता है उसके अकॉर्डिंग। It is applicable for all categories, particularly for those who don't come under SC, ST and OBC, because you can benefit only from one side only. General, obviously. There are certain conditions for that purpose. I think प्लॉट का कुछ साइजेस है उसमें, वो बेसिकली जो डिवीजन बता देंगे कि रूरल में है तो 200 स्क्वायर यार्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अर्बन में है तो 100 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 5 एकड़ से ज़्यादा लैंड नहीं होनी चाहिए, एनुअल इनकम 8 लाख से अबोव नहीं होनी चाहिए। वो उसकी सर्टेन कंडीशंस है, वो आपको नेट पे भी अवेलेबल है, आपको मिल जाएगी। दैट इज EWS, जो कि 10% उनकी रिजर्वेशन होती है। ये तो ऐसा मान सकते हैं जो 10% का रिजर्वेशन मिला है EWS लगाने के, वो ओबीसी का जो मार्क्स होगा उसके इक्वल आ रहा है या नहीं? नहीं, ये तो मैटर करता है एग्जाम टू एग्जाम, कोई जरूरी नहीं है। कई बार ओबीसी जो है जनरल से भी हाई चला जाता है, उसके आसपास रहता है। EWS जो है बेसिकली जनरल के आसपास ही रहता है, ऐसा बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता किसी भी एग्जाम में इन कंपैरिजन टू SC एंड ST। जो रैंक होती है उसमें EWS लगा रहे हैं जो जनरल कैटेगरी है, वो आके ओबीसी में ही आता है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि अगर हम रिजर्वेशन लगा रहे हैं तो ओबीसी वालों को प्रॉब्लम हो रही है, अगर मैं पहले से रिजर्वेशन तो कंपटीशन टफ हो रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने बताया ना आपको, मैटर करता है आपने कौन सा एग्जाम दिया, उस एग्जाम में कितने कैंडिडेट्स बैठे, EWS के कितने थे, और जो बैठे उन्होंने कैसा परफॉर्म किया। It all depends upon merit and marks secured by the candidate. यहाँ मैरिज का रजिस्ट्रेशन होता है, ठीक है, जो कि अब मैंडेटरी है। उसके बारे में ब्रीफ करेंगे आपको। हमारे बच्चे स्वीट्स प्लीज आप लोग आइए, हमारी खुशी में सब शामिल हो जाओ। नशे का देखो, आप लोग सबसे बड़े सोर्स हो कि अगर कोई अगर नशा कर रहा है तो उसको कैसे बचा सकते हैं। आपके कोई साथी अगर आपको लगता है कि कोई पुड़िया वगैरह लेके आ रहा है या कोई इस तरह की दवा लेके आ रहा है, तो आप तुरंत अपने जो क्लास टीचर हैं उनको आप बताइए, क्योंकि ये बहुत ही बुरी लत होती है। अगर आज की डेट में आप उसे बचाएंगे तो आप ये सोचिए कि उसको एक नई लाइफ दे रहे हैं, क्योंकि अभी तो बच्चे को कुछ पता नहीं होता है, लेकिन धीरे धीरे उसका पूरा शरीर जो है वो पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है इस नशे की लत से। फिर वो दूसरी चीज़ें भी, इलीगल एक्टिविटीज स्टार्ट हो जाती हैं। नशा करेगा तो पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, फिर चोरी करेगा उसके लिए, तो काफ़ी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ वगैरह में भी इन्वॉल्व हो जाता है। हाँ, तो आप बिल्कुल नहीं चाहते ना कि इस तरह से आपके किसी दोस्त के साथ हो। तो अगर आपको कभी भी अगर ऐसा लगता है कि कोई भी शख्स इस तरह की एक्टिविटी कर रहा है, तो क्या करना है? हाँ, जरूरी नहीं है कि सबके सामने बताएं, अकेले में आके बता दीजिए, ताकि आप लोगों का नाम भी डिस्क्लोज ना हो और उस बच्चे की भी लाइफ बच जाए, है ना। तो आगे से ऐसा करेंगे आप लोग, पक्का? हाँ, नहीं, अच्छा है, इस तरह की चीज़ें आप करिए। कभी भी अगर आपको लगता है कोई भी अगर नशा कर रहा है, और पढ़ाई तो आप लोग करते ही हैं, टीचर्स जो होते हैं सबसे बड़े गाइड होते हैं आपके, क्योंकि उनको पता है कि इस लेवल से आगे आपको कैसे लेके जाना है। कभी भी आपको कुछ दिक्कत होती है, आपको दो लोगों को सुनना है, आपके पेरेंट्स और दूसरे टीचर्स। ये लोग ही आपको अच्छे से गाइड करेंगे। और कुछ भी अगर ज़िंदगी में आपको कुछ भी दिक्कत आती है तो इन लोगों से ही सहारा मांगिए, इन्हीं लोगों से डिस्कस करिए। टीचर क्लास में स्ट्रिक्ट ज़रूर होती हैं, लेकिन उनका जो हार्ट होता है ना, काफ़ी सॉफ्ट होता है। आप ये मत सोचिए अगर कोई डंडा लेके कोई टीचर डांट रहा है तो आप कोई परेशानी लेके जाएंगे तो नहीं बताएंगे। वो आपको परेशानी कुछ भी होगी तो उसका समाधान ज़रूर बताएंगे। वो
बच्चों का चेहरा देख के पहचान जाते हैं कि बच्चे के साथ क्या चल रहा है। तो कभी भी कुछ दिक्कत हो, स्ट्रेस बिल्कुल मत लें, अपने टीचर्स के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ उस चीज़ को डिस्कस करें, और हर एक समस्या का समाधान होता है। इस चीज़ को आप लिख लें, अपने दिमाग में बसा लें। कुछ भी अगर परेशानी आती है आपको, कभी एग्ज़ाम में मार्क्स कम हो गए, कभी गलती से फेल भी हो गए, तो ये मत सोचिए कि लाइफ का एंड हो गया है। कई बार वो नई शुरुआत होती है आपकी। होता है कि आप दोबारा डबल स्पीड से आप लोग तैयारी करते हैं। तो ये सब चीज़ें छोटी मोटी होती हैं, लाइफ में चलती रहती हैं, सबके साथ होता है। आप लोग जितने लोगों से मिलेंगे, उनसे इंटरेक्ट करेंगे, पता चलेगा कि सबके साथ कुछ ना कुछ दिक्कतें रहती है, लेकिन उन समस्याओं से कभी नहीं डरना है। क्या करेंगे, कभी भी दिक्कत आएगी तो, और अगर टीचर्स ने बात नहीं सुनी तो, और अगर पेरेंट्स ने नहीं सुनी तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये लोग बात ना सुने। टीचर्स बात सुनती हैं, ऐसे ही पेरेंट्स भी बात सुनते हैं। ठीक है, तो मैं तो आपको शुभकामनाएं देता हूँ। ऑल द वेरी बेस्ट। इसी तरह से अच्छे से पढ़ाई करिए, अपने बड़ों का सम्मान करिए। कुछ भी समाज में कुछ भी गलत चीज़ें अगर आपको नज़र आती हैं तो अपने टीचर्स को, अपने पेरेंट्स को ज़रूर बताएं। ठीक है। सर मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ, आपका 2019 का बैच है, तो आपको से कितना टाइम लगा था यूपीएससी क्रैक करने में, और जो रिवीजन की स्ट्रैटेजी थी वो मुझे जानना है। यूपीएससी क्रैक करने में 3 से 4 साल लगे थे, क्योंकि मैं ऑलरेडी वर्किंग था। जनकपुरी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में मैं आईसीयू की ड्यूटी कर रहा था, तो जॉब के साथ ही मैंने पढ़ाई करी थी, और कोचिंग वगैरह नहीं ली थी क्योंकि शेड्यूल उस तरह का नहीं बन पाता था। तो ये चीज़ आपको जाननी बहुत ज़रूरी है कि अगर आपके पास ऑलरेडी कुछ कमिटमेंट्स हैं तो उसके साथ भी आप अपने दूसरे लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। और 1-2 टिप्स मैं आपको बताऊंगा कि भाई जब भी आप पढ़ाई करते हैं तो रिवीजन को आप ज़रूर ध्यान रखें। रिवीजन कोशिश करें कि हफ्ते में, महीने में एक आध बार रिवाइज करते रहें जो आपने उस टाइम पढ़ा है, ताकि जब आप एग्ज़ाम में, जब एंड में जब आपको ज़रूरत पड़ेगी तो वो आप देखेंगे बहुत ही ईजी हो चुकी हैं चीज़ें। तो पढ़ाई करते रहिए, रिवाइज करते रहिए, कोशिश करिए जो आपके नोट्स हैं उसको छोटे से छोटे फॉर्म में बनाएं। उस नोट्स को, जैसे एक पैराग्राफ होता है ना, तो उसका अगर समराइज करेंगे तो 1-2 शब्दों में उसको समराइज कर सकते हैं। तो उस तरह से आप देखेंगे कि पूरा का पूरा पेज जो है आपका 4-5 शब्दों में समराइज हो जाएगा। तो उसको अगर आप रिवाइज करेंगे तो बहुत जल्दी रिवाइज हो जाता है। तो इस तरह से स्ट्रेटजी बनाइए और पढ़ाई करिए। मोटिवेशन अप डाउन होता रहता है इंसान का, और पेरेंट्स भी कहते हैं कि जब ऑलरेडी आप सक्सेसफुल हो चुके हो तो क्यों आप दूसरी लाइन में जाना चाहते हो। लेकिन जब पेरेंट्स को आप समझाते हैं कि ये आपका मोटिवेशन है कि आप ब्रॉडर स्केल पे काम करना चाहते हैं, तो पेरेंट्स भी आपको सपोर्ट करते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि कुछ भी आपका लक्ष्य है उसको आप पेरेंट्स से ज़रूर डिस्कस करें, क्योंकि जब पेरेंट्स और जो आपके टीचर्स हैं जो आपके साथ हो जाते हैं, फिर कोई भी ताकत आपको हरा नहीं सकती है। सर, एक सवाल विद्यार्थियों के लिए बड़ा इंस्पिरेशनल है, क्योंकि आपका जीवन ही एक उन बच्चों के लिए मोटिवेशन होगा जो किस तरह से आईएएस में कम्पीट किए और एमबीबीएस भी कम्पीट किए। ये एक चमत्कार हुआ कैसे, आप स्वयं डॉक्टर नितिन शाक्य जी की जुबानी सुनिए। देखिए, सब चीज़ें स्ट्रैटेजी के ऊपर ही डिपेंड करती हैं। कि 12th के टाइम पे भी मतलब काफ़ी सारे इश्यूज थे मेरे साथ, लेकिन एक स्ट्रैटेजी बनाई गई, और जो पास्ट के जो पेपर्स थे उनको मैंने खंगाला कि किस तरह से क्वेश्चंस का पैटर्न है। उस बेसिस पे मैंने अपनी स्टडी को लिमिट किया। तो लास्ट के जो 2 महीने थे एग्ज़ाम से पहले, तो उसमें काफ़ी सीरियसली मैंने पढ़ाई करी थी। तो इसीलिए मैं 12th को अच्छे मार्क्स से पास कर पाया, और जो पीएमटी का एग्ज़ाम होता था उसको क्रैक कर पाया। तो कुछ भी आपका लक्ष्य है तो स्ट्रेटजी आपकी सही होनी चाहिए। आप के पास रिसोर्सेज बहुत सारे होंगे पढ़ाई के, तो ये मत सोचिए कि सब चीज़ें आपको पढ़नी है। कोशिश करिए लिमिटेड पढ़ें, लेकिन क्वालिटी का पढ़ें। और जीवन में खेलने का भी मौका होना चाहिए,
जो आपके एंटरटेनमेंट की एक्टिविटीज़ हैं उसको भी इम्पोर्टेंस दें आप। ये ना हो कि सिर्फ पढ़ाई 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 करे जा रहे हैं। पढ़ाई एक पार्ट है, लेकिन आपके व्यक्तित्व का जो विकास है उसके ऊपर भी आपको जोर देना है। जो भी चीज़ आपको पसंद है उसको एज ए मोटिवेशन आप यूज़ करिए। कई बार होता है कि बच्चों को, किसी को मूवी देखना पसंद है, किसी को बाहर जाके कुछ डिश खाना पसंद है, आइसक्रीम खानी पसंद है, तो एक टारगेट बनाइए कि भाई मेरे अगर 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं तो फिर मैं एक आइसक्रीम वगैरह या चॉकलेट यूज़ करेंगे हम लोग, या अगर एक 10-15 जो रिविजन्स हो गई हैं तो फिर जाके मूवी देखेंगे। तो जो भी आपका मोटिवेशन है उसको आप ऐसे पढ़ाई से आप लिंक कर देंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो पढ़ाई करने का तरीका है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा। तो इन चीज़ों के ऊपर आप लोग फोकस करिए। सर मुझे क्वेश्चन, जैसे आपने बताया कि आप जॉब कर रहे थे, देन आपने यूपीएससी की प्रिपरेशन शुरू की, तो आपने अपना टाइम कैसे मैनेज किया था? जैसे हम कॉलेज स्टूडेंट्स हैं तो सुबह जाओ, देन 5 o'clock और 6 o'clock घर तक जाता है, तो टाइम मैनेज करने में थोड़ी इशू होती है बिकॉज कॉलेज का भी काम होता है, तो आपने वो चीज़ कैसे की? ये इसमें 2 तरह के स्टूडेंट होते हैं। एक जो होते हैं फुल टाइम जो तैयारी करते हैं, दूसरे होते हैं जो पार्ट टाइम तैयारी करते हैं। फुल टाइम वालों को तो कोई दिक्कत ही नहीं है, उनके पास टाइम ही टाइम है। पार्ट टाइम वाले हैं जो या तो कॉलेज जा रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो हमें बिल्कुल ये नहीं सोचना है कि पार्ट टाइम है तो हम किसी भी तरीके से फुल टाइम वाले से कमज़ोर हैं। हमारे पास बल्कि डबल मोटिवेशन होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास कम टाइम है तो हमें उस कम टाइम में ही आउटपुट ज़्यादा लेके आना है। उसकी एक तरीका होता है कि देखिए सैटरडे संडे तो सभी के पास होता है, तो उसको आप यूटिलाइज करिए। और जो आपका ट्रैवलिंग टाइम होता है, दिल्ली जैसी जगह पे अगर कभी भी आप ट्रैवल करते हैं तो आप देखेंगे 1 से 1.5 घंटा आपको जाने में लगता है, इतना ही वापस में आने में लगता है। तो उसमें आप ऑडियो लेक्चर्स वगैरह सुन सकते हैं, तो 3 घंटे आपके वहाँ यूटिलाइज हो गए। और उसके बाद घर पे आके अगर आप 1-2 घंटे भी अगर पढ़ लेते हैं तो आपके 5 घंटे की डेली की स्टडी हो रही है, प्लस सैटरडे संडे को आप यूटिलाइज कर रहे हैं। तो सैटरडे संडे को ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें, और जो ये ट्रैवलिंग का टाइम है उसको अच्छे से यूटिलाइज करेंगे तो आप देखेंगे कि इजीली आप किसी भी कंपटीशन में क्रैक कर सकते हैं। ठीक है। आफ्टर 12th आपने कौन सी कॉलेज चूज किया था और क्या कोर्स किया था? मैंने एमबीबीएस किया था मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज से। ये मेडिकल का एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, उसके थ्रू आपको ऑल ओवर इंडिया सीट्स मिलती हैं। एमबीबीएस। सर आप एक एमबीबीएस डॉक्टर हैं, फिर आपने आईएएस बनने के लिए कैसे सोचा कि मैं एक आईएएस ऑफिसर बनूंगा? देखिए, जो एक सिविल सर्वेंट होता है, चाहे वो एक एसडीएम की पोस्ट पे हो या एसीपी की पोस्ट पे हो, तो उसे बहुत ही बड़े स्केल पे काम करने का मौका मिलता है और काफ़ी लोगों की ज़िंदगी पे वो इम्पैक्ट कर सकता है। आपने अभी ऑफिस में घूमा होगा तो देखा होगा कितने सारे लोग लाइन में खड़े होते हैं, कितने सारे लोग ऑफिस के बाहर खड़े होते हैं, तो उनकी ज़िंदगियों को आप बदल सकते हैं। तो अगर बीइंग ए डॉक्टर आप, वो भी इम्पॉर्टेंट है, डॉक्टरी का प्रोफेशन भी, लेकिन आपका जो इम्पैक्ट है वो कम लेवल पे आता है। लेकिन जब आप इस लेवल पे आ जाते हैं तो आप पूरे जो सब डिवीज़न है, पूरा जो जिला है, उसमें आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। तो जो एक स्पैन ऑफ कंट्रोल होता है, मतलब कितने लोगों की आप जिंदगियों को इम्पैक्ट करते हैं, वो बढ़ जाता है आपका। तो यही एक मोटिवेशन था। प्रिपरेशन के दौरान आपने कौन सी क्वालिटीज सीखी थी जो आपके अभी के टाइम पे काम होती है? सिविल सर्विस की आप कह रहे हैं? सिविल सर्विस में जो पढ़ाई का तरीका होता है वही आपको सिखा देता है कि एक अच्छा ब्यूरोक्रेट है वो किस तरह से फंक्शनल करना चाहिए। तो जो मैंने सब्जेक्ट्स लिए थे, एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लिया था, तो उसमें बताया जाता है कि जो प्रशासन है वो किस तरह से चलता है, जो प्रशासन के डिफरेंट अंग हैं, जुडिशरी कैसे फंक्शन करती है, पार्लियामेंट कैसे फंक्शन करती है, उसको डिटेल में हमें पढ़ने का मौका मिला। साथ में एक एथिक्स का भी हमारा एक पेपर होता है जिसमें बताया जाता है जब अगर डिलेमा में अगर आप हो तो उन सब चीज़ों को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो पढ़ाई का बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट था, और सबसे ज़्यादा जो था वो परसिवरेंस। जो 3 साल का जो मेरा पुराना टाइम था कि आप फेल हो रहे हैं उसके बाद भी आप लगातार पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो परसिवरेंस होना ज़रूरी है, तभी आप
इस तरह की पोस्ट में आपको हर एक तरह के लोग मिलते हैं, तो कंसिस्टेंसी आप कैसे बनाएं वो सब चीज़ें आपने पहले ही सीखी रखी है। तो अभी हम सारे स्टूडेंट ही हैं, तो हमें ऐसी कौन कौन सी क्वालिटीज डेवलप करने के बारे में सोचना चाहिए जो ओवरऑल हर फील्ड में काम आने वाली है? सबसे इम्पोर्टेंट तो है पॉजिटिविटी, कि हमेशा आपको पॉजिटिव रहना है। चाहे कभी भी कुछ भी नेगेटिव चीज़ें आती हैं तो उसमें पॉजिटिविटी आपको खोजनी है, ढूंढ लेना है कि भाई इसमें कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव होगा ही। सेकंड चीज़ है कभी हार नहीं मारनी है। अप्स एंड डाउन सबकी लाइफ में होते रहते हैं, तो ये नहीं है कि भाई डाउन फेज चल रहा है तो कुछ नेगेटिव स्टेप आप लोग ले लें। वो अप्स एंड डाउन, अगर आज डाउन है तो कल आप दोबारा से प्रोग्रेस करेंगे ही। और तीसरी है कंसिस्टेंसी, जो भी चीज़ आप करें कंसिस्टेंटली करें। अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो ये मत सोचिए कि आपने एक हफ्ते एक्सरसाइज कर ली फिर आप पूरे महीने आप लोग अच्छे से फैटी चीज़ें वगैरह खा रहे हैं और आपको फिटनेस हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। आप कम एक्सरसाइज करिए लेकिन पूरे महीने आप लगातार करिए, आधे घंटे ही करिए। सिमिलरली पढ़ाई है, पढ़ाई भी आप कंसिस्टेंटली करिए, 4-5 घंटे जो भी आप पढ़ते हैं, लेकिन डेली पढ़िए। तो ये 3 चीज़ों के ऊपर अगर आप फोकस करेंगे तो लाइफ में एक सक्सेसफुल इंसान बन सकते हैं। क्वेश्चन है हाँ, सर हमें एग्जाम के टाइम पे अपने टाइम को कैसे मैनेज करना चाहिए? एग्जाम के टाइम पे टाइम मैनेज नहीं कर पाओगे आप, इसीलिए मैंने बताया कि आपको कंसिस्टेंट होना है। आपको पूरे साल मेहनत करनी है, पूरे साल में जो भी आपके नोट्स हैं जो आप पढ़ते हैं उसको समराइज करना है। जैसे मैंने बताया कि एक पेज जो है वो आपके 4-5 लेटर्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से हमारे जो नोट्स है ना, जो हमारे पढ़ने के जो मटेरियल है, उसको जितना शॉर्ट आप कर सकते हैं उतना शॉर्ट करिए। सेकंड है उसको रिवाइज करिए, और रिवाइज करेंगे और कम चीज को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे एग्जाम के टाइम में आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि बहुत कम पढ़ना है आपको और ऑलरेडी आप पहले रिवाइज कर चुके हैं उन चीजों को। सर जैसे अभी 8th क्लास में है तो 12th के बाद सोचा है कि कॉमर्स लेके बिजनेस लाइन में जाने के लिए, तो क्या अब हम जो अभी 8th में है तो अभी से हम उसमें थोड़ा फोकस कर सकते हैं कि हम देख सकें कि बिजनेस लाइन में की क्या चीज चल रही है और मतलब कैसे हम उसको आगे जाके कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, आप जिस भी फील्ड में आपका इंटरेस्ट है उन चीज़ों को आप एक्सप्लोर करना अभी से स्टार्ट कर सकते हैं। और सबसे अच्छा सोर्स होता है न्यूज़पेपर और जो डिजिटल न्यूज़ आती है टेलीविज़न वगैरह पे, उसमें जो भी आपको इंटरेस्ट करता है उन चीज़ों को देखना शुरू करिए। जैसे कि आप बिजनेस में जाना चाहते हैं तो बिजनेस का एक कॉलम आता है न्यूज़पेपर में, उसको पढ़िए। बेसिक जो वोकेबलरी है उसको आप इंटरनेट पे सर्च करिए। न्यूज़ में बिजनेस न्यूज़ आती है, उसको आप देख सकते हैं। तो थोड़ा सा टाइम डिवोट करिए, आपका माइंड और ओपन होगा उसमें। मतलब सर पढ़ाई के साथ वो भी करूँगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये सब चीज़ें तो आपको करनी ही है। वही मैंने बताया कि पढ़ाई एक पार्ट है, लेकिन आपका जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है और जो आपका लॉन्ग टर्म गोल है उसके ऊपर भी आपको फोकस करना है। Sir, I have a question. Which stream should I take after class 10 if I want to prepare for UPSC entrance examinations? Actually, it depends in which field you are comfortable with. If you like science subject, then you should go for that. Some of the students like art subject, so accordingly, so it's totally up to you. And there is no one best field. किसी भी आप स्ट्रीम में जाएंगे, you can do wonders depending on your skill, personal skills. Thanks. लाइन से आ जाएंगे बच्चे। ये लेटर ऑफ अवार्ड को प्रेजेंट किया जा रहा है और ये अवार्ड फॉर स्किल कार्ड वर्थ 20,000 कैरियर काउंसलिंग एंड मोटिवेशनल सेशन बाय एसडीएम पटेल नगर श्री नितिन शाक्य जी। एक बार जोरदार तालियां बजाइए। आरजेएस पीबीएच आरजेएस पॉजिटिव मीडिया में 10 साल से क्रिएटिव हेड के रूप में आकांक्षा मन्ना, जिनकी परफॉर्मेंस आप लोगों ने देखा है, और बहुत सारे न्यूज़ आइटम्स इनके आरजेएस पॉजिटिव मीडिया पे मिलेंगे। तो आकांक्षा मन्ना, आइए एसडीएम श्री
डॉक्टर नितिन शाक्य जी से ये award। टेन लोगों को ये विशेष दिया जा रहा है। इसके बाद हम लोग फिर आएंगे तो फिर सिलेक्शन करेंगे और लोगों को भी अवार्ड दिया जाएगा। बाकी पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट ईच एंड एवरीबॉडी, जितने स्टूडेंट्स आए हैं कॉलेज और स्कूल के, उन सबको प्रदान किया जाएगा। आकांक्षा मन आप लिखा ना रक्षा आयु क्लास 11 स्टूडेंट फ्रॉम KVBSF Ramchala। हमाया 8th क्लास स्टूडेंट फ्रॉम सिल्वर ओक पब्लिक स्कूल। हमाया पूजा कुमारी सेकेंड ईयर स्टूडेंट ऑफ कालिंदी कॉलेज। नेक्स्ट नाम भी बोल दीजिए। नेक्स्ट नाम प्रिंसी सेकेंड ईयर स्टूडेंट ऑफ कालिंदी कॉलेज। नेक्स्ट बोल दो नाम से यार। आयुषी 8th क्लास स्टूडेंट ऑफ सिल्वर ओक पब्लिक स्कूल। सोनी सेकेंड ईयर स्टूडेंट ऑफ कालिंदी कॉलेज। ऋतिक पांडे and last up we have Sabu। और नेक्स्ट जो है Next up we have the certificate distribution and I request one by one students please come and receive the ईच एंड एवरी स्टूडेंट, शुरू से ही आप आ जाओ लाइन से जो बच्चे हैं। बेटा क्लैप प्लीज, आप लोगों को ही मिल रहा है। लाइन से लाइन बना ले बच्चे, लाइन से सभी आ जाओ। आप सभी उधर से आ जाइएगा। सभी बच्चे तो सबको मिलेगा सर्टिफिकेट। साफ
उसका तो फिर लाइन से आ जाएंगे बच्चे। ये लेटर ऑफ अवार्ड को प्रेजेंट किया जा रहा है और ये अवार्ड फॉर स्किल कार्ड वर्थ 20,000 कैरियर काउंसलिंग एंड मोटिवेशनल सेशन बाय एसडीएम पटेल नगर श्री नितिन शाक्ति जी। एक बार जोरदार तालियां बजाइए। आरजेएस पीबीएच आरजेएस पॉजिटिव मीडिया में 10 साल से क्रिएटिव हेड के रूप में आकांक्षा मन्ना, जिनकी परफॉर्मेंस आप लोगों ने देखा है, और बहुत सारे न्यूज़ आइटम्स इनके आरजेएस पॉजिटिव मीडिया पे मिलेंगे। तो आकांक्षा मन्ना, आइए एसडीएम श्री डॉक्टर नितिन शाक्ति जी से ये टेन लोगों को ये विशेष दिया जा रहा है। इसके बाद हम लोग फिर आएंगे तो फिर सिलेक्शन करेंगे और लोगों को भी अवार्ड दिया जाएगा। बाकी पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट ईच एंड एवरीबॉडी, जितने स्टूडेंट्स आए हैं कॉलेज और स्कूल के, उन सबको प्रदान किया जाएगा। आकांक्षा मन Raksha Ayu, class 11 student from KVBSF Ramchala. Humaya, 8th class student from Silver Oak Public School. Humaya, Pooja Kumari, second year student of Kalandi College. नेक्स्ट नाम भी बोल दीजिए। नेक्स्ट नाम प्रिंसी, second year student of Kalandi College. नेक्स्ट बोल दो नाम से यार। Ayushi, 8th class student of Silver Oak Public School. Soni, second year student of Kalandi College. Ritik Pandey, and last up we have Sabu. और नेक्स्ट जो है Next up we have the certificate distribution. And I request one by one students please come and receive the ईच एंड एवरी स्टूडेंट, शुरू से ही आप आ जाओ लाइन से जो बच्चे हैं। बेटा क्लैप प्लीज, आप लोगों को ही मिल रहा है। लाइन से लाइन बना ले बच्चे, लाइन से सभी आ जाओ। आप सभी उधर से आ जाइएगा। सभी बच्चे तो सबको मिलेगा सर्टिफिकेट। साफ